Mayank, Sir, thank you I so want to much. tell you Hi, one Wonderful. thing. sir. How are you, sir? Hi. Sir, Okay, good to see everyone. Yes, sir, yes. को बोलिए, कौन sir, बोल रहा it's है? Juhi's birthday. Oh, hi, Juhi ji. Wishing you a very, very happy birthday. God bless Thank you. you Have a so much, beautiful, sir. wonderful, loving birthday. Thank you. Sir, your blessing Have means a, a lot. I'm so grateful that today you have put this session for me. I feel as if it's for me. oh, nice. Thank you so much. Party. Yes, sir. I wish the God stays with you on your side this beautiful year. God bless so you. much, Have a sir. wonderful, wonderful year. Thank you very much. This is wonderful. Thank you. I'm very happy. साहिल जी आप कैसे हैं? काफी दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं आपके. Yes, sir. Good evening, sir. Very, very good Sir, evening. How बहुत are you time doing? बाद. Yeah, I'm good, sir. I'm doing fine, sir. I've again started again the 5 a.m. I've just started it again. चलो that's So, wonderful. जहाँ आप कहाँ रहते हैं? बड़ी ठंड है वहाँ पर ना, मैं भूल गया. Sir, जगह? हरिद्वार. हरिद्वार. ओए होए, बस मेरा भी मन है पहाड़ों में आने का कुछ टाइम के लिए. सर आ जाइए, उत्तराखंड आ जाइए, बहुत बढ़िया Oh, I ठंड would है. love to. शूटिंग चल रही है, बस अभी तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा, but I really want to come. Yes, sir. But wonderful. Oh, Great sir. to see everyone. Wonderful. Okay, everyone is here. Okay, so guys, listen to me very carefully. One, I'm operating from the phone. There's no laptop at the moment. Two, I'm in the car at the moment. I hope you guys can see me. थोड़ी बहुत light है. बाकी तो Yeah, sir. हाँ, you guys can see me. You can hear me as well. Okay. तो प्लीज एक जिम्मेदारी खुद उठाएं, खुद को म्यूट करने की, क्योंकि मुझे देखे यानी काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं and I can only see. हाँ, झील जी Yes, खुद sir. को म्यूट कर दीजिए प्लीज. हाँ. बाकी सभी खुद को म्यूट कर दें. Then we will quickly start with the questions. अच्छा, और एक सेकंड, पीछे से आवाज आ रही है किसी की. शिव, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. 1 second, mute. Is there anyone else who is? हाँ, तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज खुद को म्यूट रखें because I can't see too many people. I will have to keep swapping otherwise. 1 second. Just give me a second. Okay, wonderful. So let's start with the Q&A. Question and answer शुरू करें. Good to go. कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत करते हैं. सवाल आपके. Okay, wonderful. So please raise your hands जिसके जो सवाल है and I'll start answering one by one. Okay. हाथ खड़ा कर सकते हैं. You can raise your physical hand or you can raise the emoticon. Okay, let's start with Viraj first. Please keep the emoticons on. जिसका हो जाएगा वो please emoticon वाला हाथ जो है उसको नीचे कर लेगा ताकि बाकी सबका मैं देख सकूं. Okay, so that I also know कितने लोगों के सवाल है. ओके, सवाल जाहिर सी बात है अपनी जिंदगी से आपके रिलेटेड होंगे, बट कोशिश मेरी यही होगी कि जवाब जो है यूनिवर्सल हो, सो दैट आप सभी की अपनी अपनी जिंदगी की कुछ परेशानी उस सवाल से रिलेटेड सॉल्व हो जाए. ओके, गुड टू गो. लेट्स स्टार्ट विद विराज. सर, मतलब आई एम वेरी थैंकफुल, मतलब कि मैं आपके हमेशा सेशंस हमेशा मतलब देखता हूँ इंस्टाग्राम में, या फिर आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो. एंड hello. Yeah, I can hear you. Thank you so much. That's very kind of you. विराज, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहें. विराज, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक हैंग हो गया विराज का वीडियो प्रोबेबली. Okay, should we move on? I think विराज का इंटरनेट हैंग हो गया. Maybe he's going to come back again. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं. तेजस्विनी, let's move on to you. To your come back to Viraj. Can you hear me right now? Very good evening. I'm very good. How are you doing? All good with you? Good sir. अब तो सब सही चल रहा है, बट 5 AM से वापस स्टार्ट कर दिया मैंने भी कल से. बट अब पीछे एक टाइम में मैं स्टक हो गई. Very good. We also starting. Sorry to cut you in. No problem. That's okay, sir. Yes, sir. Sorry to cut you in. I think with 5 AM back again on Sunday. You guys can join it. सबके लिए है. जिसको 5 AM join करना है, from Sunday onwards, coming Sunday onwards, we're starting 5 AM back again. You can start. Okay? Yes, sir. हाँ जी, बोलिए जुही जी. Oh, sorry, तेजस्विनी जी बोलिए. इन बिटवीन बहुत कुछ हो गया. मैंने गोपी मैम को इन्फॉर्म किया था जब मैं मुंबई आई थी, तब हमारे घर पे चोरी वगैरह हो गई, बहुत कुछ गया उसमें. ओके.
बट उसका भी इतना टेंशन नहीं लिया क्योंकि आपकी सीख थी ना, जो हो गया उसको तो चेंज नहीं कर सकते, वी शुड मूव फॉरवर्ड, राइट? तो उसी इस पे हम तो सब अच्छे से जा रहे थे, और उसमें मैंने देखा कि मेरे भैया कितने अच्छे से सब चीजें संभाल रहे थे, तो मैंने सोचा अगर ये बंदा जिसने लाइफ टाइम लगा दी, अगर वो सब जाने के बाद ये इतने स्टेबल है, तो हम कहाँ ये हो जाए। सही बात है, दैट इज पहले ब्यूटीफुल। उसके हाँ, उसके पहले एक हुआ था कि सब सही चल रहा, बट सडनली एक पॉइंट आया जहां मैंने महसूस किया कि विड्रॉल सिंड्रोम आ जाता है। लाइक हर चीज से हम भागने लग जाते हैं, सब सही तो चल रहा है, बट सडनली जैसे मुझे पता था कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे पता है कि मैं सेशन अटेंड करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, बट वो टाइम ऐसे हो रहा था कि मुझे उतना भी हिम्मत नहीं था कि मैं आके सेशन अटेंड करूं या कोई चीजें करूं, किसी से बात नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, ना सोशल मीडिया यूज करना है, ना घर वालों से बात करनी है, ना फ्रेंड्स से बात करनी है, इनफैक्ट सेशंस भी अटेंड नहीं करने, जबकि मुझे पता है एनर्जी वहां से मिलेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है। लाइक आई एम फाइनली बैक, बट मैंने सोचा कि चलो ये डिस्कस। देखिए, एक बात मैं सबको समझा देता हूँ, बड़ा जरूरी है एक बात को समझ लेना। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, किसी ने 50 सेशन अटेंड किए होंगे, किसी ने 100, किसी ने 150, किसी ने 250, किसी ने 10-20, मुझे नहीं पता, काउंट मेरे पास नहीं है। पर मैं आपसे जरूर कहूंगा ये बात, जब हम सेशंस अटेंड करते हैं, मेरे हों किसी के भी हों, जो भी पॉजिटिविटी को रिइंफोर्स करता है, आपको नई सोच देता है, नई समझ देता है, हमें एक समय के बाद ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि चीजें हो गई हैं, अब शायद इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहली बात तो ये है, ये कोई जरूरत नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बीइंग। कुछ सीखना इज अ पार्ट ऑफ योर बीइंग। क्योंकि हो क्या रहा है, सबको समझना जरूरी है, हमारी जो कंडीशनिंग है ना, बहुत डीप रूटेड रही है, 20-25-30 साल की कंडीशनिंग रही है, जहाँ पे जो विड्रॉल सिम्टम्स भी हैं, जहाँ पे डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, पैनिक अटैक्स भी है, परेशानियां भी है, स्ट्रेस भी है। और ये भी समझना जरूरी है, जिस तरह के एनवायरमेंट में हम रहते हैं वो बहुत स्ट्रेसफुल और फियरफुल है। देखो, ये सारी चीजें अगर हम सतयुग में होते ना तेजस्विनी जी, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम कलयुग में हैं। राइट सतयुग सर। में क्या होता है, जिस तरह के आप हैं वैसे ही 99% लोग होते, तो कोई परेशानी नहीं थी। आप पॉजिटिव हैं, बाकी सारे परेशानी नहीं देने वाले लोग हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द पॉइंट इज, we do not live in a world like this. We live in a world which is ruthless, which is fearful, which is upsetting, irritating. All the negative connotations are there. Correct? तो हमारे लिए ना फिर ज्यादा, हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस सारी डीप रूटेड कंडीशनिंग को, आसपास के एनवायरनमेंट को, जो स्ट्रेसफुल है, जो फियरफुल है, जो तंग करता है, परेशान करता है, एंक्शसनेस क्रिएट करता है, वी हैव टू वर्क ऑल द मोर हार्ड। तो जितने भी सेशन जिसके भी किए, मेरे करें, किसी और के करें, यूट्यूब से करें, वीडियो सीखें, कुछ भी करें, कीप इट टिल द टाइम यू स्टार्ट बिकमिंग लाइक दिस, और टिल द टाइम योर बीइंग इज फुल ऑफ इट। मतलब फॉर मी इट्स बीन सो लॉन्ग, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब तक मैं दिन में कुछ नया देख नहीं लेता, सुन नहीं लेता, पढ़ नहीं लेता, महसूस नहीं कर लेता, या खुद साइलेंस में नहीं बैठ जाता, मुझे चैन नहीं मिलता। डिस्पाइट ऑफ डूइंग इट सिंस मे बी 2 डेकेड्स, शायद 20 साल हो गए होंगे इस बात को आज की डेट में। ये शुरुआत तब हुई थी जब मैंने शिव खेड़ा जी की किताब पढ़ी थी, और जब मेरा फियर ऑफ फेलियर की वजह से क्रिकेट छूट गया था। तो मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन आई थिंक 1999, 2002 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, या 2001 के आसपास की बात कर रहा हूँ। तो आज 20 साल हो गए, तो मैं कॉलेज में था। तो 20 साल से प्रोसेस चल रहा है, कॉन्स्टेंटली जिंदगी भर चलता रहेगा। तो हर किसी के लिए समझना जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हैं, उसके साथ खुद को परिपक्व करते चले जाएं, और कभी भी ये ना समझे, ना सोचें कि हो गया है, अब हम हो गए हैं, वी आर रीइंफोर्स्ड विद पॉजिटिविटी। तो क्या होता है, जब हम, जैसे आपने कहा ना, वो विड्रॉल सिम्टम्स, क्योंकि इतनी डीप रूटेड कंडीशनिंग है, वो वापस आ ही जाएंगे। जब भी कोई परेशानी, विपदा, दिक्कत जिंदगी में आएगी, what will happen is all those things will start to come back and take over it. वो क्या करता है, धीरे धीरे आएगा। तो पहले 1 दिन 2 दिन शायद आप उससे लड़ भी लोगे, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें, 15वें, 20वें, 25वें दिन क्या होगा, वो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे, यू विल गो बैक टू वेयर यू वर, बिकॉज दैट्स अ ओल्ड डीप रूटेड कंडीशनिंग। तो ऐसे टाइम पे आपको अपने ब्रेन के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना पड़ता है, एंड यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट लिसन, आई वांट दिस। स्पेशली अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो you'll have to go back to your basics whenever you get stuck.
इट्स लाइक जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे कोच कहते थे whenever you get stuck go back to the basics, right? Go back to the shadow practice. हमारे क्रिकेट में shadow practice होती थी जिसमें टेक्निक सिखाई जाती थी. So basically what I'm trying to say is whenever you get stuck in life, wherever the problem arises, go back to the basics. तो ये समझना बड़ा जरूरी है, सबके लिए जरूरी है. यस सर. तो शायद इसी मुझे वजह से सेशन पे सर क्योंकि आपकी पुरानी कंडीशनिंग बहुत सारी है. नहीं, राइट. See, this is not the way to. I'm not promoting our sessions. All I'm saying is हमारे sessions no, हो, no, YouTube videos हो, Instagram हो, कुछ भी हो. Wherever you can, wherever you can intake positivity, wherever you can intake new perspective, wherever you can intake some kind of feeling which pushes you to move forward in life. जो आपको आगे बढ़ाए, फिर मैं हूँ, कोई और है, कोई भी इंसान हो, ताकि वो withdrawal symptoms बड़े खतरनाक होते हैं. वो फिर this is also very minute sign of depression. बिकॉज डिप्रेशन में भी यही होता है, आपका कुछ मन नहीं करता करने का. आपको पता है आपके सामने जूम खोल के आप 5 मिनट में चीजों को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो, लेकिन आप लेजी हो जाते हो, आप लेथार्जिक हो जाते हो. यू जस्ट डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. यू जस्ट डोंट वांट टू एंटर बिकॉज यू लाइक नहीं. दिमाग बहुत सारी चीजें क्रिएट करेगा फॉर एवरीवन whoever has going through or has gone through. That is the time you have to become action oriented. That is not the time to keep sitting and keep moving over the same things again and again, or mulling over the same things again and again कि ऐसा हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ. उन सब चीजों में ना पड़ के बहुत बारी जिंदगी में एक्शन की जरूरत पड़ती है, बहुत बारी अंडरस्टैंडिंग की. Sometimes when an action is required, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करती. उस समय तो एक्शन लेना है. आसपास कचरे में रह रहे हो तो एक्शन लेना है. वहाँ पे समझ से क्या हो जाएगा, या फिर इल्यूजन बना के क्या हो जाएगा कि नहीं नहीं मेरे आसपास सब अच्छा है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल. है कचरा लेकिन मुझे अच्छी स्मेल आ रही है, ऐसा थोड़ा ना होगा. you'll have to cut it down. you'll have to take the broom and start cleaning everything. यस सर. करेक्ट. जहाँ जिस चीज की जरूरत है वहाँ उस चीज की जरूरत है. ठीक है. यस सर. some I can tell you कि ये कब से स्टार्ट हुआ था. Does it answer your question? यस सर. बट ये सब कब से स्टार्ट हुआ था, कैन आई टेल यू? कैन आई शेयर? हेलो. ओह गॉड. Sorry, I'm losing your voice. हेलो. बोलो. Am I audible? Yes, बोलो. Yes, you are. Now tell me what were you saying? यस सर. मतलब सर एक टाइम ऐसे हुआ था कि ये मुझे पता है एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ था. आई शेयर्ड मेनी थिंग्स जो किसी को कभी कुछ बताया नहीं. ऐसा सेशन हुआ था जो हमारा, बट आई फील गुड अबाउट दैट. बट उसके बाद मुझे एकदम सडनली क्यों पता नहीं सेल्फ डाउट आ गया कि पता नहीं आगे वाले क्या सोचेंगे, ये किया मैंने क्या होगा. तो वो चक्कर में वो मेरा 1 मंथ पूरा उसी में गया. लाइक व्हाट नेक्स्ट पर्सन. क्योंकि सेल्फ डाउट हमारा पता क्या, ये कोर नहीं होना चाहिए लेकिन कोर बन गया ना. इतने सालों की डीप रूटेड कंडीशनिंग है. तो जैसे जब चीजें इमीडिएटली खराब होती हैं, हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स है सेल्फ डाउट ओनली. जब तक हम चीजें सीखते चले जाते हैं तब तक हम सेल्फ डाउट में नहीं रहते, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहते हैं. लेकिन ये तो फिर टेम्परेरी इलाज होता जा रहा है ना. हम उसको कोर का हिस्सा नहीं बना पा रहे हैं. हर बारी हम रूट में जाने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि हम सेशंस कर रहे हैं और ऊपर ऊपर से हम मरहम लगा रहे हैं और फिर हम वापस वहीं जा रहे हैं. तो फिर फायदा क्या है सेशंस का भी, टू बी ऑनेस्ट. आप समझ रहे हो, ये मतलब इट्स अ रॉन्ग वर्ड. इट कैन नॉट बी योर नीड. इट कैन बी ईदर अ पार्ट ऑफ योर बीइंग. चाहे वो सेशन हो, चाहे वो वीडियोस हैं, चाहे राइटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, किसी का भी कुछ भी हो. बट इट कैन नॉट बी कि यार फिर तो गड़बड़ हो रही है. इसका मतलब अगर आप बार बार आपको लग रहा है कि ये कोई डोज थोड़ा ना है, कोई कैप्सूल थोड़ा ना है, होना भी नहीं चाहिए ना. फिर तो इट विल बिकम लाइक अ ड्रग. अब वो ड्रग ये वाला हो या वो वाला हो, ड्रग तो ड्रग है. इट कैन नॉट बी लाइक दिस ना. So you will have to understand yourself. I think a lot of times we do not understand ourselves कि हम क्या हैं, क्या थे, क्या हो रहा है. हमें खुद को जानना बड़ा जरूरी है कि क्यों है, किस बात का सेल्फ डाउट होना चाहिए. कितने सालों से सेल्फ डाउट है, इतना सब कुछ तो कर लिया, अगर फिर भी वो सेल्फ डाउट नहीं जा रहा तो इसका मतलब डीप रूटेड और जाओ, उसको वहां से बाहर निकालो, क्योंकि निकालना तो आपको ही पड़ेगा. ऊपर से मरहम लगाने से 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन. 5 AM is just a tool to help you. It's just a basic step. 5 AM हो, हमारे IB के सेशंस हो, संडे लर्निंग कोर्स हो, कुछ भी, कोई भी सेशन हो, ये भी सेशन हो. बट इट कैन नॉट बी कि ये नहीं है तो हम खत्म हो जाएंगे, मतलब हम फिर वापस वहीं चले जाएंगे. वो भी नहीं होना चाहिए ना. तो मैं हर चीज में दोनों दायरे समझा रहा हूँ. ये भी जरूरी है और ये भी समझना जरूरी है कि हम किसी भी चीज पे डिपेंड
डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते, क्योंकि आई हैव टू शो यू बोथ द पॉइंट्स, दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, सो यू आस्क योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ। ये हर प्रॉब्लम में आते इमीडिएटली सेल्फ डाउट कि क्या गड़बड़ है, कहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ कहीं हो रही है बहुत तगड़ी, क्योंकि ऐसे तो जिंदगी में परेशानी तो आएगी। आज चोरी हुई है, कल कुछ और होगा, परसों 50 चीजें और होंगी, तो होगा ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि किस हर इंसान की जिंदगी हमेशा स्मूथ रही। आपकी क्या, मेरी भी स्मूथ नहीं रहती, ऊपर नीचे होता ही रहता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो does that mean that I keep doubting myself, or does that mean that I've equipped myself to handle it? Why do we learn so many things in life? Because we want to equip ourselves so that we can handle it better. Simple. Okay, let's try and do थैंक यू that. सो मच सर। वैसे तो You आज are मैं बहुत most खुश हूँ क्योंकि आई गॉट 3 न्यू प्रोजेक्ट्स, सो लाइक थोड़ा सेल्फ डाउट तो हट गया है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया है। देखो बेटा, रुको रुको रुको, अपने सेल्फ डाउट और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम प्रोजेक्ट से नहीं जोड़ सकते। गड़बड़ मत करो, नहीं तो फंस जाओगे। आज 3 प्रोजेक्ट्स हैं, कल 3 में से 0 रह जाएंगे, परसों माइनस में हो जाएगा, फिर सेल्फ डाउट में आ जाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं अपने साथ? सोचो जरा, ध्यान से, बड़ा जरूरी है इस बात सर को आप हैंग हो समझना। गए। Can't hear you. That failure, this criticism, that appreciation. Okay, hello, hi, can you guys? आपको आवाज आ रही है सभी को मेरी clearly? यस Can you guys hear सर। me? यस सर। Okay, wonderful. So I was saying the only thing that I'm saying is, sorry, some internet issues may happen here and there because I'm traveling. All I'm trying to say is, projects cannot decide a part of our being, वरना फंस जाएंगे। फिर तो वही होगा ना, जब काम है तो बहुत अच्छा लगेगा, जब नहीं होगा तो सेल्फ डाउट आ जाएगा। सेल्फ डाउट नहीं आ सकता ना, काम के आने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, काम नहीं होगा तो सेल्फ डाउट आ जाएगा। रिलेशनशिप के आने से किसी ने हाँ कर दिया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसने छोड़ के चलेगा तो सेल्फ डाउट आ जाएगा। करेक्ट, तो हम तो फंस जाएंगे। फिर तो वही चक्रव्यूह में फंस गए जहां पर है। और पूरी दुनिया, हम बाकी सब लोग कहाँ फंसे हुए, इसी में तो फंसे हुए। ये तो सबका चक्रव्यूह है। द मोमेंट समथिंग इज गुड इज देयर, they are on the top of the world. The moment something bad happens, again self doubt, self fear, everything starts to come, and then boom, everything goes up. तो हमें समझना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है हमारा स्थिर होना इन एवरी सिचुएशन, क्योंकि अगेन बात वहीं आ जाएगी, या तो हमारी बहुत ज्यादा कर्म जो है ना, वो सिर्फ वैलिडेशन से रिलेटेड है। हम हर बारी वैलिडेशन ही मांगते हैं, चाहे वो पैसे का है, चाहे वो नाम का है, चाहे फेम का है, चाहे वो अप्रिसिएशन का है, चाहे तारीफ का है, चाहे कुछ भी है। कर्म को कर्म से जोड़ो, कर्म को कर्म के रिजल्ट से नहीं जोड़ सकते। उसको समझना जरूरी है। You'll have to start becoming centered and balanced so that your being cannot be dependent upon how many projects you get, what relationship you get deceived in your relationship, or somebody fills you in the relationship. No, your being has to be neutral towards everything. तभी तो नहीं तो फंसते चले जाओगे ना। फिर तो वही सामने वाले की तरह, जैसे वो आपको नचा रहे और हम नाचते चले जाते हैं। So we have to understand that. ये स्थिरता आपको अपने अंदर खुद ही डालनी पड़ेगी, कोई और नहीं देगा आपको। कि ठीक है, आज प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी हैप्पी विद दैट, बट दैट्स ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, देन अगेन आई विल स्टार्ट डाउटिंग माय सेल्फ। फॉर एवरीवन, वो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो किसी का मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो एक्नॉलेजमेंट हो सकती है, अप्रिसिएशन हो सकता है, फेम, नेम, पावर, मनी, एनीथिंग दैट कैन हैपन। यू विल हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। You cannot be involved in this. You can just see them. जैसे बालकनी पे खड़े होकर हम कैसे देखते हैं, या पिक्चर को कैसे देखते हैं, दूर से देखते हैं ना, पिक्चर के अंदर तो नहीं घुस जाते ना। आपको एक्टर नहीं बनना। This is not a part of your life to become that actor. You just have to see it. That it's coming, very good. It's going, that's okay. But I can't, my being cannot be dependent upon this. My being is not identified with this.
वरना मैं तो 5 मिनट लगेंगे, फिर क्या होगा, फिर वही बेट होती है ना, फिर क्या होगा, लोग टेम्प भी बड़ी जल्दी कर देंगे आपको। फिर आप कोई भी काम करने को तैयार हो जाएगा, हुक हो या क्रुक हो, आपको तो चाहिए, चाहे वो प्रोजेक्ट हो चाहे वो रिलेशनशिप हो। करेक्ट। आप किसी भी हद तक चले जाओगे, क्योंकि आपका अस्तित्व उस चीज पे डिपेंडेंट है या उस इंसान पे डिपेंडेंट है। तो फंस गए फिर तो वही बात आ जाएगी, फिर वही होगा कि अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। जैसे कोई लालच देगा, कोई ग्रीड करेगा, कुछ भी करेगा, जरा सा अटेम्प्ट करेगा, हम खींचे चले जाएंगे। हमारे कर्म की सारी डिपेंडेंसी उस रिजल्ट पे हो जाएगी। फिर हम कर्म बाद में करने की सोचेंगे, पहले सोचेंगे रिजल्ट क्या है इसका, इससे मिलने वाला क्या है। MS धोनी को देखो, कितना कमाल का क्रिकेटर, इंडिया कैप्टन और सब चीजें। मैंने तो नहीं देखा उसको रिजल्ट के पीछे भागते हुए कभी। सिर्फ कर्म, सिर्फ कर्म, सिर्फ कर्म। जितने भी लोग थोड़ा सा स्थिर हैं, वो सिर्फ कर्म से रिलेटेड है अपने। इसलिए कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, का मतलब ये है कि कर्म में ही सब चीजें हैं, बाकी सब चीजों में नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके, Yes, sir. वंडरफुल। मूविंग ऑन टू, थैंक यू, लेट्स so मूव, much, sir. थैंक यू सो मच। लेट्स मूव टू विराज। आपका सवाल छूट गया विराज, इंटरनेट की वजह से। लेट्स कम बैक टू विराज। ओके सर, एक्चुअली आई जस्ट वांट टू आस्क कि हम लोग फियर ऑफ फेलियर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज के अंदर। देखो, मेरे अंदर बहुत फियर ऑफ फेलियर था, तभी इस वजह से मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। आज से 20 साल पहले की बात है। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, बिकॉज डर बहुत ज्यादा था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आसपास के लोग क्या कहेंगे, माँ बाप ने इतना 2-3 साल का टाइम दिया है, अगर उसमें नहीं हो पाया तो डर बहुत सारे हैं। जिस तरह के एनवायरमेंट में हम रहते हैं, वो डर और भी ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। खासकर वो डर पेरेंटल प्रेशर या सिबलिंग प्रेशर, रिलेटिव प्रेशर, ये सब बड़े होते हैं और आपको अंदर अंदर कोकून में फंसा देते हैं, आपको खोखला करते चले जाते हैं। तो बहुत जरूरी है समझना, ये फियर ऑफ फेलियर सिर्फ और सिर्फ समझने से जाएगा, और इसका दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे फियर से बाहर आना है जिंदगी में। आप समझे, जैसे मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था जब मेरा क्रिकेट छूटा था, जब ख्वाब टूटा था, तो मुझे लगा था यार मैंने मेहनत बड़ी की, शिद्दत बड़ी की, तपस्या बहुत की, लेकिन सब चीजें फेल इसलिए हो गई क्योंकि मैं डर बहुत रहा हूँ हर चीज में। तो आपको अपने डरों का तो सामना करना ही पड़ेगा ना। छोटी छोटी चीजों में अगर डर है, तो उस डर का सामना किसको करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा ना, आपको ही करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों, फिर वो हाइपोथेटिकली वो छिपकली हो, वो कॉकरोच हो, घर के दरवाजे हो, घर की कुंडियां हो, घर के ताले हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है, जब हम छोटे छोटे फियर्स को फेस करते हैं, धीरे धीरे फिर बड़े बड़े फियर्स को फेस करने की भी क्षमता आती है। यू विल हैव टू फेस इट, देयर इज एब्सोल्युटली नो चॉइस विद दैट। उसकी एक डीपर स्टडी ये कहती है कि फियर जो आप सोच के बैठे हो, वो बेसिकली एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है। वो भ्रम क्या था, मुझे लगता है मैंने वो भ्रम क्रिएट कर लिया था कि पता नहीं माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरा हो नहीं पा रहा, मैंने तो उनकी नाक कटवा दी, मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल वेस्ट कर दिए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हम बहुत सारी कहानियां बनाते रहते हैं अपने दिमाग में, ये पता नहीं जो सत्य हैं भी कि नहीं। हम जीवन में कहानियों में बहुत ज्यादा जीवन जीते हैं। अभी मैं फेल हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले फियर आ जाता कि अगर फेल हो गया तो इसको क्या कहूंगा, उसको क्या कहूंगा, वो क्या जवाब देगा, ये क्या जवाब देगा, पता नहीं मेरी इज्जत की क्या हालत हो जाएगी, कोई मेरी बात को ध्यान नहीं देगा। आप समझ रहे हो, आई एम क्रिएटिंग स्टोरीज इन माई हेड। आई हैव नॉट फेल्ड अभी। फियर ऑफ फेलियर का मतलब ही क्या है, फेलियर से पहले का फियर। फियर पहले आता ना, फेलियर बाद में आता है। फियर हमेशा पहले ही आएगा, इंसिडेंट बाद में होगा जिंदगी में। इतना तो तय है, इतना समझ में आता है। वाक्य, इंसिडेंट जो भी होगा वो बाद में होता ना, हमें तो फियर उससे पहले आ जाता, घबराहट हो जाती है, डर लग जाता है। एग्जाम में फेल हो गए तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कौन है जो अनम्यूट है, जसप्रीत, जबजीत, सॉरी, हाँ जबजीत जी, प्लीज म्यूट कर दीजिए खुद को 1 सेकेंड। और सर मुझे सेकंड क्वेश्चन भी था नहीं, कि रुकिए रुकिए हाउ। रुकिए 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 रुकिए, पहले मैं एक बार इनका सवाल खत्म कर लूं, फिर उसके बाद करते हैं आराम से, शांति से। तो कोशिश करना पड़ेगा कि धीरे धीरे आपको जिंदगी में उसको फेस करना पड़ेगा। और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपको बताई, वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि किसी इंसिडेंट के होने से पहले का फियर होता है, फियर पहले आता है, इंसिडेंट बाद में होता है।
तो हम क्योंकि सोचते रहते हैं, दिमाग में कहानियां बनाते रहते हैं, इस कहानियों में फंस जाते हैं। तो कहानियों को थोड़ा छोड़ना है। खुद को ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, जब इंसिडेंट होगा तब की तब देखेंगे क्या होगा। इंसिडेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई कुछ बोल देगा या मार पड़ जाएगी घर पे, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा, मृत्यु नहीं हो जाएगी किसी की इंसिडेंट के बाद। करेक्ट? थैंक यू। लेट्स फेस इट। ओके, लेट्स डू दैट। ओके, Thank you Japjeet. Let's move on to next person, then I come back to your second question later on, okay, if we have time. ओके सर। Thank you. Let's go to Ashwini Soni from Nepal. You Excuse can me, switch sir. on your video. Yes, कौन बोल रहा है? Excuse me, नाम I बताइए। am Japjeet. I am अच्छा, Japjeet. हाँ जी, आपका भी सवाल रह गया जपजीत जी। Yes, sir. Yes, sir. रुकते हैं, एक मिनट रुकते हैं, आपका Okay. सवाल लेते हैं। Okay, पहले sir. इनका ले लेते हैं, फिर आपका लेते हैं। आप सभी वीडियोस ऑन करेंगे ना तो मुझे दिखेगा भी एक्चुअली। Okay. हाँ, अश्विनी जी, कैन यू हियर मी? अश्विनी सोनी फ्रॉम नेपाल, देन वी कम टू जपजीत जी। अश्विनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, ओके, चलो लेट्स गो टू जपजीत जी। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, देन वी आंसर योर क्वेश्चन, वी ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। यस, जपजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, Good evening, हाँ जी, sir. गुड इवनिंग। हाँ जी, Sir. नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, सर मैं फर्स्ट टाइम आपका सेशन ज्वाइन करा है, पर मैं Okay, आपको सुन thank के you. मेरे को सर मुझे आपको सुन के मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। पर सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं सुनती हूँ, मैं अमल करना चाह रही हूँ उन पे, पर मेरे पे मीन्स मेरे को क्या करना चाहिए कि मैं उस पर अमल भी करूँ। क्योंकि आज की सिचुएशन आपको बताती हूँ मैं। जैसे आज मेरे साथ क्या हुआ सर, कल आई रन अ डे केयर, क्रैच Okay. चलाती हूँ सर। ठीक है। तो सर मीन्स देखिए, बच्चों को मैं आज से नहीं, बहुत सालों से मैं बच्चों को रखती हूँ, ठीक है। कुछ पेरेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पर मैं उनको भी प्यार से टैकल कर रही हूँ। पर वो लोग मेरे को, भाई अगर आपको स्विच ऑफ करना है तो आप करिए ना, आप दूसरों को क्यों बोल रहे हैं? तो वो बातें मुझे बहुत हर्ट होती हैं। और लाइफ में भी सर मेरे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं बहुत ज्यादा मतलब क्या कहें कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मैं बहुत डाउटफुल रहती हूँ। तो सर आप मेरे को थोड़ा सा गाइड कीजिए कि मुझे स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में ये चीजें लाऊं। देखिए, मुझे लगता है जब बहुत सारी परेशानियों से घिरे हो ना, तो सिरे जैसे जिंदगी में क्या होता है ना, अगर धागों की गुत्थी बन जाती है तो बहुत हाँ ज्यादा जी। तंग करती है। प्रॉब्लम मतलब इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी, तो दिमाग काम करना बंद कर सकता है। तो क्या पॉसिबल है कि एक एक टाइम पे एक एक चीज को सुलझाया जाए, वन थिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इन द सेंस। और पता है क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये समझना भी जरूरी है, अगर कोई प्रॉब्लम जिसमें एक्शन की जरूरत है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है, तो वहां पे एक्शन जरूरी है। करेक्ट? कभी कभी क्या होता है, जहां पे एक्शन चाहिए होता है वहां पे हम एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि हम फियरफुल होते हैं या कमजोर होते हैं या डरे हुए होते हैं। तो अगर आपको लगता है, जैसे आप डे केयर क्रच चलाती हैं और आपको लग रहा है कि कुछ पेरेंट्स तंग कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें हमारा फियर है कि हम उनको कुछ कह नहीं पा रहे जो कहना चाहते हैं। हाँ जी। करेक्ट? क्योंकि शायद उससे यस हमारी यस, नौकरी, फाइनेंसेस, बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। तो देखो, सर उसकी दिस भी इज द हर मेन चीज की, प्रॉब्लम। आई अंडरस्टैंड दैट, देखो हर चीज की एक लिमिट भी तो होगी, लेकिन कभी ना कभी तो देखो बात वहीं पर आ जाती है। आई अंडरस्टैंड, फाइनेंस है, सब चीजें हैं, लेकिन अगर एक पेरेंट जो तंग कर रहा है या दो पेरेंट जो तंग कर रहे हैं, वो पूरा क्रच तो नहीं चलाते हैं। हाँ जी। करेक्ट? लेकिन ये भी होता है कि उनकी हाँ वजह जी। से 10 लोगों को खराब भी करते हैं। तो हाँ अगर जी। एक हाँ को जी। लूज करके हम अपना सुकून वापस ले सकते हैं, जिससे हम और प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं, तो बेटर है कि हम थोड़ा सा कम कमा लें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। All I'm trying to say is just handle one thing at one point of time, and sometimes an action is extremely important so that we can hold our ground strong. क्योंकि देखो, एक बार आप प्यार से समझा लोगे, 2 बार समझा लोगे, 3 बार समझा लोगे, फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि सामने वाले को लगे कि नहीं, क्योंकि आपकी मजबूरी है तो यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड एंड दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग एंड देन योर अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ आर आल्सो सफरिंग। सर दैट जब जहां जिस थिंग्स चीज आर की आल्सो जरूरत हैप्पी। है, सॉरी,
I'm saying that they are taking me for granted and they are saying Yes. that I'm needy. They are thinking for हाँ, that, क्योंकि but I'm yes, explaining that क्योंकि I'm not. Your child is not a problem for me. I'm loving your child, but you should not means only listen to your child only, because one case happened with me. The parents were thinking that our kid is very nice, our kid is doing all the things right. You are the corrupt person. And after some time, that those parents only called me up, कि ma'am, you were right. We showed up child that no, you are good, but now that देखिए आज की डेट में ना, that child. आई अंडरस्टैंड, मैं सबको बता देता हूँ जो भी पेरेंट्स भी है ना यहाँ पर, अगर कोई सुन रहा है मेरी बात ध्यान से, हाँ जी, आजकल पेरेंट्स हो गए हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। क्या जब जी सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा, बताइए। बिल्कुल सही है सर। मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे भी बेटा हेलीकॉप्टर का है मतलब 12th समझते हैं क्लास ना में। जो सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। देखिए बच्चे हैं, बच्चों से मोहब्बत है, अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स आज के हेलीकॉप्टर पेरेंट्स इसलिए बन गए हैं क्योंकि 24 घंटे बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं और बच्चों पे समझ नहीं पा रहे कि बच्चों को एक सही जगह की, सही गुरु की, हर चीज की जरूरत होती है। सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं होते सब चीजें, राइट? कहीं हर जगह से कुछ ना कुछ बच्चा सीखता है। द पेरेंट्स हैव बीन स्टार्टेड टू हॉवर अराउंड द किड्स ऑल द टाइम और अपने बच्चे को ही सच्चा और अच्छा मानते हैं, बाकी सबको गलत मानते हैं। हाँ जी सर। तो ये थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ। ऐसा 20 साल पहले नहीं था, करेक्ट? हम भी भले बड़े हुए हैं, हमारे माँ बाप को तो पता नहीं होता था मैं कौन सी गली में खेल रहा हूँ, उनको तो ये नहीं पता होता। रात को शाम को घर घुसते थे तो पता लगता था। उसका रीजन ये है क्योंकि उस समय के पेरेंट्स बहुत फियरफुल नहीं थे। आजकल के पेरेंट्स बहुत फियरफुल हैं। अब वो फियर उनके अंदर इतना ज्यादा है तो वो फियर बच्चों में भी आता है। अब वो क्या होता है, वो फियर न्यूक्लियर फैमिली की वजह से भी है, क्योंकि अकेले दो ही लोग हैं, दोनों काम कर रहे हैं, हाइपोथेटिकली पता ही नहीं कि पेरेंटिंग करनी भी कैसे है और कैसे नहीं करनी। 4 किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली में नानी दादी चाची सब होते थे, तो कोई ना कोई तो संभाल ही लेता था बच्चों को। अब उनको पता भी नहीं है। इसमें ये नहीं कह रहा कि किसी की गलती है या किसी का कसूर है, बट डर बहुत सारे हैं और डर के चक्कर में बच्चों को भी बांध के रखते हैं यहाँ पर। सर आप हैंग हो खरीद गए। लिया है किसी को। हाँ सर, ये लोग यही सोचते हैं फिर। सॉरी, कैन यू हियर मी राइट नाउ? यस सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सोचते इसलिए भी क्योंकि हम उनको सोचवाते भी इस तरीके से है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मेरी नीड किसी को नजर आएगी तो कोई टेकर फॉर ग्रांटेड कैसे नहीं लेगा। हाँ जी। तो नीड अगर आपकी है भी तो उसको अंदर ही रखो, दिखनी भी नहीं चाहिए फिर अगर है तो। नीड है पर चेहरे पर आत्मा नजर नहीं आनी चाहिए ना। आज जैसे अब उन्होंने खुद ही अपने आप ही आए, मैंने उनको सिर्फ यही, हाँ जी सर, मैं समझ गई कि मुझे उनको शो नहीं करना, पर उनको टैकल बहुत पोलाइटली और इंटेलिजेंटली लेना पड़ेगा। उनको प्यार से समझाया है सर मैंने तो। एंड ऑल्सो जब जी जिंदगी में एक रूल याद रखिएगा, ये मेरे सीनियर्स ने जब मैं एक्टिंग करता था ना स्टार्टिंग में तो सिखाया था कि 1 बी पोलाइट बट बी फर्म एज वेल। आपको अपनी बातों पे भी रहना जरूरी होता है, करेक्ट? तो उससे क्या होता है ना, सामने वाले को आपके अस्तित्व की वैल्यू भी होती है। अगर आपको लग रहा है कि एक पेरेंट 2 पेरेंट तंग कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू टेक एन एक्शन टुवर्ड्स दैट आल्सो, सो दैट एवरीवन एल्स आल्सो गेट्स सेट। समटाइम्स ये बड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ फिक्स रूल नहीं होगा। यू विल हैव टू हैंडल इट टैक्टफुली एंड अंडरस्टैंड इट कि लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से और चीजें भी खराब हो रही है। सो वन थिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, extremely important. If you think there's an action that needs to be taken politely but firmly, you can take that as well. Third, I think let's try कि अगर हमारी नीड तो हमारी है, वो हमारे अंदर की बात है। हाँ जी। तो कोशिश करते हैं वो नीड सामने वाले को ना नजर आए, especially in your workplace, so that the other person doesn't exploit you, humiliate you, or take you for granted. It's nice, simple. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Wonderful. Thank you. Let's go to Kompal जी। हाँ जी, हमारे लॉयर जी, बताइए कौन सा सवाल है पूछना चाहती हैं आप? सर सवाल तो नहीं है, पहले तो थैंक यू बोलना आपको बहुत सारी चीजों के लिए।
जिसकी लिस्ट अभी Thank you. खत्म नहीं होगी. Anyway, Thank you. That's very kind of you. so I have literally, I feel that I'm a changed person from head to toe. Though I might not be regularly Oh, nice. posting in the 5 a.m., but I am That's religiously okay. following it. That's one. Wonderful. And secondly, it has, immensely helped me in a way of dealing with the clients. जो अभी बात हो रही थी ना, that how do you deal with people around you? It's really helped. So अभी मुझे चीजें इफेक्ट नहीं करती हैं. पहले I could cry on the drop of the hat. अच्छी बात है. So मेरा I know question that, yes. basically ये है कि human attribute and human attitude, how much are they Okay. linked? Human attribute and human attitude. ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल सा सवाल है. हम तो सीधे सीधे से सवालों के जवाब देते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा. I'll make it simple. Yes, आप सिंपल ही बताएं. यहाँ सिंपल भाषा समझ में आती है. Characteristics of a human being और उसका attitude कितना एक दूसरे से linked है. मतलब say if I am being tagged as arrogant, how much does it reflect on my characteristics or an attitude? कुछ भी कैरेक्टर नहीं है यहाँ पर किसी का. मतलब कैरेक्टर इन द सेंस, मतलब ये नहीं है. मैं कैरेक्टर लेस की बात नहीं कर रहा. मतलब इन रियल टर्म्स देयर इज नथिंग कॉल्ड कैरेक्टर. वो बेसिकली क्या होता है, बिल्ड होते होते जो भी आपने अपनी जिंदगी में आज तक एक्सपीरियंस किया है, वो सारा देखिए बड़ा सिंपल है. हमारे 5 सेंसेस, ये मेन सेंसेस हैं. आईज, ईयर, नोज, टंग, टच. इसी से सब चीजें एक्सपीरियंस करते हैं. ये सारी चीजें जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही हमारी मेमोरी में फीड होती है. करेक्ट. वही जो हमारी मेमोरी में फीड होती है, मेमोरी से ही आपके थॉट्स आते हैं. राइट. करेक्ट. वहीं से थॉट निकलता है ना कुछ सोचते रहते हो पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में. कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा, महसूस किया होगा, इस मेमोरी में स्टोर होगा. तभी तो किसी ने चांद के बारे में बताया होगा, दिस इज मून, MOON. तो मेमोरी में छप गया. तो फिर चांद पे जाना कैसे है, कब जाना है, कहाँ जाना है, तारे कैसे होते हैं, मोहब्बत में तारे कैसे लगेंगे, ये सारी चीजें कैसे आती है, मेमोरी के थ्रू आ रही है. मेमोरी के थ्रू थॉट क्रिएट होता है, थॉट के थ्रू इमोशंस एंड फीलिंग्स. करेक्ट. सही है सर. तो बेसिकली जो हमारा चरित्र है, जैसे हम अपना चरित्र कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जो भी उसमें आता है, एरोगेंस आ गया, XYZ आ गया, फ्लैम्बॉयंस आ गया, गुडनेस आ गई, कुछ भी कहते हैं, ये सब है क्या एट द एंड ऑफ द डे? इन्हीं सब चीजों तो मिश्रण है. इन्हीं सब चीजों से कुछ भी परमानेंट नहीं है. सेंसेस आपके परसीव करते रहेंगे नई नई चीजें, वैसे वैसे नए एक्सपीरियंसेस होंगे, वैसे वैसे आपके कैरेक्टर, आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, आपकी मेमोरी में चेंजेस आएंगे. जब मेमोरी में चेंजेस आएंगे तो मेमोरी में चेंजेस आएंगे तो थॉट्स में चेंजेस आएंगे. तो सब चीजें बदल रही हैं. तो हम कैरेक्टर लेस होने का मतलब यह है कि नो कैरेक्टर, मतलब हैव जीरो. सो जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बात कर रहे हो, वो तो बदलाव के साथ है. कल कुछ और थे, लेकिन हम उनको पकड़ के बैठ जाते हैं. सब मुझ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. कह दिया, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया. सुनो, सिंपल है. बहुत सारे लोगों को यहाँ लगता होगा, मैं अपनी बात करता हूँ, चलो दूसरों पे क्या बात की जाए. सबको लगता होगा, वाओ सर इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज डूइंग दिस फॉर एवरीवन, ही इज डूइंग दिस फॉर हिमसेल्फ, XYZ व्हाटएवर. चलो गुड एक वर्ड ले लेते हैं, ही इज अ नाइस गुड ह्यूमन बीइंग. इतना सिंपल. करेक्ट है. आपको कैसे पता कि मैं नाइस हूं या गुड हूं? आपने तो सिर्फ मेरे अस्तित्व का एक अंश देखा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. अंदर से मैं क्या हूँ किसी को पता है यहाँ पर? राइट सर. किसी को पता लग सकता है कभी? जो मैं हूँ, मेरे से ज्यादा तो कोई खुद को नहीं जानता ना. किसी को क्या पता 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे का सेशन में 22 घंटे दिन के कैसे रहता हूँ किसके साथ? सही बात. पता ना कुछ भी. तो समझो, तो फिर जो दिख रहा है उसको पकड़ भी नहीं सकते, तो क्योंकि वो सत्य नहीं है. वो एक अंश दिख रहा है, एक फ्रेगमेंटेड अप्रोच. एग्जैक्टली द सेम थिंग. अब क्या होता है, बड़ी इसमें कमाल की बात है, जैसे इस इमेज में कॉट अप हो जाओगे. जैसे मैं अपनी एक इमेज में कॉट अप हो गया था. बचपन से लेकर मुझे कहा जाता था, ही इज अ गुड बॉय, ये तो हमारा अच्छा बच्चा है, तो सब समझ लेगा. अब समझे, वो अच्छा बच्चा सब समझने के चक्कर में क्या हुआ, आई बिकेम क्लॉस्ट्रोफोबिक.
कि भाई मेरी भी कोई डिजायर है, मेरी भी कोई महत्वाकांक्षा कोई पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि यही तो सब समझ लेगा, ये तो सब कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, ये तो सब एडजस्ट कर लेगा, समझे, घर का बड़ा बेटा है, रिस्पॉन्सिबल है, XYZ, ये है वो है, आप समझे। आई I was caught up in that image for such a long span of time because I did not understand. फिर I'm compromising everywhere, even in my relationships, even in my workplace, everything मैं सर झुका के कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन से सिखा दिया, बचपन से डाल दिया दिमाग में। सर आपने But बहुत that is- राइट एग्जाम्पल दिया. I am actually, you know, in myself also trying to break this mold only. कि why you know, like compromise everywhere, be it family, be it parents, be it friends, be it whatever. Because they have, to be very honest, they have conditioned or brainwashed you to do the same. Like I Correct, was sir. brainwashed to do Absolutely. the same. Acha, to be very honest and very frank, for their own motive. That Sir, I can't hear you. उसमें, I'm saying, even if they have whatever conditioned and brainwashed the others have done for you, they have done it for their own motive, not for you. उसमें Right, आपके लिए sir. कुछ नहीं किया, I have क्योंकि come to उसमें understand that now. उसमें उनकी क्या होता है ना, जैसे मैं तो अपने माँ बाप को, बाकी को तो नहीं बोल सकता, अपने माँ बाप को तो बोल सकता हूँ। होता क्या है ना, उनकी भी ये कहे कि मेरा बड़ा अच्छा बच्चा है, हर चीज में एडजस्ट कर लेता है, पता है कितना बड़ा ईगो को हाई मिलता है 4 लोगों के सामने। Chivalry for the wrong reasons. ये ईगो है बेसिकली, और कुछ नहीं है। देखो हमने कितनी अच्छी परवरिश की है, हम कितने अच्छे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारा बहुत ओपिनियन वो हो भी बेटा- ना सर. हाँ, चाहे हम वैसे हो बिना, लेकिन क्या होता है ना, ये लेयर देखो, जिंदगी में ना बहुत सारे लेयर्स होते हैं, हम एक लेयर को पकड़ के जिंदगी, ये लेयर उनका भी लेयर है। अब ये नहीं कह रहा कि इसमें वो गलत है या सही है, मैं सिर्फ हम आपकी बात करो और अपनी बात करो। एट द एंड ऑफ द डे जी, जब मैं सर. उनकी बात करूंगा तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझूंगा, समझाऊंगा, सर एब्सोल्युटली. क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में उनको भी तो अपना एक ओहदा चाहिए, अपना एक रुतबा चाहिए, दूसरों के लिए और अपने लिए भी। तो उनके अपने वो फियर्स हैं। अब वो 10 लोगों के फियर्स हैं कि लोग क्या कहेंगे, भाई क्या कहेगा, बहन क्या कहेगा, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, कजन्स क्या कहेंगे, दादी क्या कहेगी, नानी क्या कहेगी, इन सब के फियर्स में वो अटके पड़े हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो फियर्स आपको पास ऑन करते हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप हर चीज में एडजस्ट हो जाओ। हो सकता है वो खुद रेवोल्यूशनरी हो जिंदगी में, लेकिन उनको ये भी लगता है कि वो हम बड़े रेवोल्यूशनरी रहे हैं, हमारी तो वैसे किसी ने इज्जत नहीं की, अब एक काम करते हैं, बच्चे को तो ऐसा कर देते हैं, वो कम से कम एक्सेप्टेंस में चला जाए हर चीज में। बहुत सारी चीजें होती हैं। सर वही So what I'm trying to say एग्जैक्टली is, एक्चुअली. do not get determined by what is being taught and brainwashed and conditioned to you, because that's not the truth. The truth will keep changing because you are evolving. Sorry to cut you in. आप पहले जैसे आपने कहा कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, करेक्ट, 6 महीने साल में जो भी टाइम। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही होता है कि यू लीव योर ओल्ड स्किन एंड यू गेट इनटू अ न्यू फॉर्म, करेक्ट। जी सर. अब ओल्ड स्किन का मतलब क्या है? अब फिजिकली स्किन थोड़ा ना छोड़ दोगे, वो तो बायोलॉजिकल जो चल रहा है। ऑब्वियसली. ओल्ड स्किन का मतलब यही है, अपने ओल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने ओल्ड एट्रीब्यूट्स, अपने ओल्ड एटीट्यूड, वही सब तो छूट रहा है। कि पहले सेल्फ डाउट आ जाता था 15 मिनट में ही, अब नहीं आता, अब कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि पहले गुस्सा आ जाता था, अब गुस्सा नहीं आता। पहले मैं एरोगेंस से फ्लैम्बॉयंस में चला जाता था, जली जाती थी, अब नहीं आता। अब पहले मैं क्वेश्चनिंग में चला जाता था बहुत ज्यादा, अब शायद मैं एक्सेप्टेंस में चला जाता हूँ। या हाइपोथेटिकली पहले मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, कर लेता था, अब मैं सिंपल हो गया हूँ। करेक्ट, आप समझे मेरी बात? समझ तो गई इतना सर. ही सिंपल है। प्रदीप जी देख लीजिए, अगर पैसे चाहिए तो दे दीजिएगा इनको। हाँ सर एक्चुअली बस एक और चीज ये भी है कि मतलब आई डोंट नो, मुझे कभी कभी लगता है कि यू नो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में भी ना देयर इज अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट यू फेस. यस, तो देखो वहां ट्रांसफॉर्मेशन पे में एक ट्रांजिशन टाइम होता है ना। हाँ वही सब, बट वही है कि वो ट्रांजिशन टाइम ही ऐसा होता है कि व्हेन यू आर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड. लोगों को लगता है कि होगा। आप एक तरह से हो, आपको पता है कि आप वैसे नहीं हो, एंड यू नो यू आर इन दैट लिम्बो या position या space where you can't explain to people that look I was this and now I'm trying to become this and that's just a phase. तो देखो मेरे साथ समय वो तो बहुत लगता हुआ है, किसी भी चीज especially में with ना। my parents, you know, of late. तो ओके
मतलब कई बार आई हैव हर्ड ड्यू टू दिस दैट व्हाई आर यू एक्टिंग स्नॉबिश, या व्हाई आर यू एक्टिंग ब्रैटिश. मैंने कहा भाई मुझे पता है व्हाट आई एम एक्टिंग एंड व्हाई आई एम एक्टिंग अ सर्टेन वे, बट आई फेस, आई एम समटाइम्स अनएबल टू एक्सप्लेन कि मैं मतलब किस तरह से लाइक I speak a certain way that I'm able to put across that same thought in the same manner I am perceiving it as. वहां पे थोड़ा सा इशू आ जाता है कई बार. Sahil, please mute yourself. I think Sahil ji unmute है, and Jeel also. बाकी सब please mute रखें खुद को, so that हाँ जी, yes, I understand Kompal ji. So अब वो क्या होता है ना, हर बारी आप समझा भी नहीं पाओगे हर बारी कोई, और बहुत सिंपल है, हर कोई अपने हिसाब से ही परसीव करना चाहता है क्योंकि वो अपनी कंडीशनिंग से आपको देख रहा है. सही है सर, करेक्ट. आपका सिर्फ अपनी तरफ कर्तव्य है सारा का सारा. सर वही पे थोड़ा थोड़ा कभी लगता है कि यार छोड़ो ना, क्या ही कंटिन्यू करना, बट देन there's this something in the head that brings it back. You are not doing it for somebody else, you're doing it for yourself. You're doing it for yourself. Everyone is doing it for themselves. It's as simple as that. You do it for yourself completely. So now I made it a point, I write it every day in a page that I am doing whatever I'm doing for myself, not for anybody else. Yes. Just we to have to do it only reinforce, for ourselves. just to reinforce that thought in my head. That it's only me I'm doing it for, but nobody. One second, I need to Kompal. explain. कहीं से आवाज आ रही है? Please, can you please mute yourself? Sahil, किसके मेरे पीछे से आवाज आ रही है एक्चुअली. अच्छा, okay, sorry, my bad. हाँ जी, no problem. मेरे पीछे से आवाज आ रही है. कोई नहीं, फिर ठीक है, फिर चलेगा. आप क्या कह रहे थे? My puppy is crying actually कि खाना दे दो. कोई नहीं. आप लास्ट कुछ फिनिश करें. मैं वही बोल रही थी सर कि I have now made it a ritual of a sort that I at least tell my mind 5 times 6 times once I wake up and before I sleep that whatever is the transition, yeah, whatever I'm doing, whatever action I've done through the day is for myself, but not to like explain it to somebody else that I'm doing it. Absolutely. Everything is for yourself. Will always be for yourself. This whole journey is for yourself. Journaling and a lot of like every day जो आपका वो update आता है, I तो keenly wait for it every day, even though I do anything else or not. That's okay, no problem. That's wonderful. I'm happy to hear that. Thank you, sir. Thank you so much. I think that's about it. Thank you. Let's move on to next participant. Let's move on to, I think, Pallavi. So one more thing, I'll have to take your leave here. No problem. You can. No problem. Thank you. Thank you so much. Thank you. Pallavi ji. Pallavi Randive. Sir, after that, can I go? Can I ask? Sorry. After that? After Pallavi. Yes. Who is that? Jeel. अच्छा, Jeel. Yes, of course. I'll take your question. Let's move on to Pallavi. Pallavi ji, आपको मेरी आवाज आ रही है? Pallavi Randive. Okay, let's talk to Jeel first, then we come to Pallavi later on. हाँ जी, Jeel, बोलिए. Hello, sir. Sir, am I audible? Hi. Yes, you are. सर एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि मुझे डर क्या था एक्चुअली इंस्टा में सर ऑफिशियल ह्यूमन ऑफ बॉम्बे करके पता है पेज है. यस, मैंने पढ़ा है इसके बारे में. आई थिंक सो. यस, दे हेल्प कुछ है उसमें. हाँ, तो सर मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, देख रही थी, तो मैंने एक इंसान का देखा कि उसको बेचारे 28 ईयर का था बेचारा, और उसको किडनी का प्रॉब्लम हो गया, एंड देन डॉक्टर ने बोला कि नहीं, किडनी फेल हो गई एंड नाउ ही हैज टू ट्रांसप्लांट द किडनी. तो सर जब मैं ऐसे किसी का देखती हूँ, जैसे अपने एक्टर था सिद्धार्थ शुक्ला, एंड आई वाज अ ग्रेट फैन ऑफ हिम, एंड ही सडनली पास्ड अवे. तो सर जैसे उसको हार्ट अटैक आ गया अचानक, तो मैं इतनी डर गई, तो मुझे भी ऐसे दुखने लगा, और फिर मैंने ऐसे ईसीजी कराया डॉक्टर के पास कि देखने के लिए कि वेदर आई एम फाइन. तो मैं रिपोर्ट नॉर्मल थे. तो क्या होता है सर, जब किसी का ऐसा बीमारी होती है, कुछ भी ऐसा होता है ना, मैं बहुत डर जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, रोने लगती हूँ. वो है ना, बार बार मेरे माइंड में स्टक हो जाता है, वो नेगेटिविटी आती है, और वो मैं निकाल ही नहीं सकती, इतनी परेशान हो जाती हूँ. तो सर मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लगता है. मुझे लगता है डर ऑलरेडी बहुत सारे हैं, लेकिन किसी और की वजह से ट्रिगर हो जाता है बस. आप समझे मेरी बात? वही सर. हाँ. कि मतलब हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत सारे डर हैं, ऐसे गुच्छा बना हुआ डर का,
तो इसमें ना सिद्धार्थ शुक्ला की बात है, ना वो ऑफिशियल्स ऑफ बॉम्बे की बात है, किसी की। वो क्या होता है ना, समथिंग जस्ट कम्स एंड ट्रिगर्स इट, चाबी लग जाती है और फिर वो सारी चीजें फिर बाहर आ जाती हैं। तो अभी जो इतने सारे डर हैं, ये किस वजह से हैं, क्या रीजन है, ये आपको सोचना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि वो डर कहीं और से नहीं आ रहा, वो डर हमारे अंदर ही है, लेकिन बाहर से सिर्फ एक ट्रिगर है, एक स्टिमुलस है, which is triggering सर it, क्या and होता है then ना everything starts to go haywire. सर, वो जो चीजें मैं ऐसे देखती हूँ ना, वो मैं खुद को रिलेट करने लगती हूँ। अभी मुझे ऐसा होगा तो मैं मर जाऊंगी तो हाँ, बहुत, मैं हाँ, आप बहुत आइडेंटिफाई बहुत ज्यादा करते हो, और मुझे हाँ लगता है आइडेंटिफिकेशन हर चीज से बहुत ज्यादा है आपका, जो देखते हो खासकर उससे बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर जाते हो। आपको क्या लगता है कि आपके साथ कुछ हो जाएगा? हाँ सर, मैं बहुत अमृत, सेंसिटिव एक हूँ और मिनट, बहुत इमोशनल हूँ रुको सर। रुको, देखो जी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब सेंसिटिव और इमोशनल हैं, ये तभी आए हैं। वरना प्रैक्टिकल होता तो आते ही नहीं ना। हाँ सिंपल सी बात है। तो अच्छी हाँ बात है। सेंसिटिव होने के बाद ही तो लव और कंपैशन आता है जिंदगी में। जो इंसान, जिसको हम प्रैक्टिकल, जो परिभाषा हमारे देश में, हमारी दुनिया में प्रैक्टिकल की है, प्रैक्टिकल का मतलब आज की डेट में हो गया रूथलेस। प्रैक्टिकल का यस मतलब होता है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है इनसेंसिटिविटी, कि सामने को रोड पे गिर रहा है, मर रहा है, लेकिन आपका अपनी जॉब है, आपका अपने, आप आंख बंद करके निकल जाते हो। क्या उसे जिंदगी कहेंगे, जीवन कहेंगे सही तरीके का, या नहीं कहेंगे, बोलो? तो आज के डेट में प्रैक्टिकल का मतलब ऐसा हो गया, प्रोफेशनल का मतलब रूथलेस, कंप्लीटली सेल्फ मेनियक, नॉट इवन सेल्फिश। सेल्फिश तो हर इंसान है ही, अपने बारे में तो सोचोगे, पहले अपना सर दर्द है, बाद में अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या कहीं पे किसी देश में क्या हो रहा है वो अलग चीज होती है। करेक्ट, वो तो एक बेसिक लेयर है हमारी जिंदगी के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का। यस सर। मुझे ऐसा लगता है कि हम आइडेंटिटी, तो जो सेंसिटिव और इमोशनल की हम बात कर रहे थे, वीकनेस बनती चली जा रही है, क्योंकि हम इसको बैलेंस नहीं करना आता हमें। हम अपने कर्म के साथ इसको बैलेंस नहीं कर पाते। हम हर चीज में वल्नरेबल हो गए हैं, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि शायद फियर्स बहुत सारे हैं अंदर। देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ एजम्पशंस ही कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि पर्सनल है। डिजायर और फियर आते हैं साथ साथ, करेक्ट? तो जिस जिस Yes. चीज का डिजायर है उससे रिलेटेड फियर भी तो आएगा ही ना, हर चीज का, कि कहीं खो ना जाए, कहीं छूट ना जाए, मेरा क्या होगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लोग क्या कहेंगे अगर नहीं मिली, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं, बहुत सारी चीजें आएंगी। दूसरी बात जो मृत्यु की बात है, ये तो बहुत सिंपल है, मतलब इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं। मृत्यु तो होनी ही है, आज नहीं होगी तो कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे कोई अमर नहीं है, किसको अमृत नहीं मिला है यहाँ पर, किसी को भी ये नहीं पता कि कब होगी मृत्यु। क्या किसी को पता है यहाँ पर? क्या कोविड में जो इतने लोग चले गए उनको पता था कि कोविड जैसा कुछ हो जाएगा और 15 दिन के अंदर ही क्वारंटीन के अंदर ही, घर के अंदर ही, या हॉस्पिटल के अंदर, रोड पे बिना ऑक्सीजन मास्क के, पता नहीं क्या क्या उनको झेलना पड़ेगा और मृत्यु हो जाएगी? क्या लोगों की नहीं हुई? तो ये तो सत्य है ना। अब वो सत्य को हम झुटलाएं, नकारें, देखें ना, तो फिर ये तो वाली बात है कि हम सामने चीजों को देख रहे हैं और आंख बंद कर लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं होगा क्योंकि मैंने आंखें बंद कर रखी हैं। इट इज द कोर ट्रूथ, इट्स गोइंग टू हैपन, एनीथिंग कैन हैपन एनी मोमेंट। यू ड्राइव कार्स, यू गो इनटू बस, यू गो इनटू रिक्शास, क्या एक्सीडेंट्स नहीं होते जिंदगी में? क्यों उन एक्सीडेंट्स के अंदर मृत्यु नहीं होती? तो जो होना है वो तो आप क्या करोगे उसमें, या मैं क्या करूंगा? अगर इस बात की सच्चाई को समझ के, महसूस करके, अवेयर हो के, आत्मसात से ज्यादा जो फियर होता है ना, आपके सारे फियर्स, सारा जो गुच्छा है ना फियर्स का, इट ओनली गोज टुवर्ड्स वन फियर। इट्स लाइक द होल सर्कल गोज टुवर्ड्स, वो डायग्राम बनाते थे ना साइंस में, one circle which has all the fears, it goes towards one fear, which is the primary fear, is called fear of death. That's it. जो आपकी बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, योर बॉडी ऑलवेज वांट्स यू टू सर्वाइव, इसलिए तो फियर ऑफ डेथ दिया है उसने आपको, वरना तो कोई कभी कहीं से भी कूदना शुरू कर देगा। करेक्ट? बॉडी वांट्स टू प्रोटेक्ट यू बिकॉज बॉडी वांट्स टू सर्वाइव। तभी तो बॉडी और माइंड कहते हैं आग मत हाथ डालो, छत के ऊपर मत कूदो, यहाँ से जंप नहीं मारना, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, क्योंकि उसने एक फियर दे रखा है आपको, फियर ऑफ डेथ का।
लेकिन अब वो फियर तो रहेगा जिंदगी भर, चाहे कोई भी इंसान हो। करेक्ट, वो फियर तो रहता ही, हर इंसान को लगता है, पता नहीं डर तो लगता है, लेकिन वो डर की इंटेंसिटी क्या है उसको हम समझ सकते हैं बस। कि मैं ये नहीं कह सकता दैट आई एम फियरलेस टुवर्ड्स डेथ टुमारो। कोई मुझे कहेगा कि सर 20वें माले की बिल्डिंग से जंप मारो तो मुझे डर नहीं लगेगा, व्हिच इज ऑब्वियस, मुझे भी डर लगेगा उस मोमेंट पे। लेकिन आपके डर की इंटेंसिटी से कम होगी, बस उसको मैं बैलेंस कर सकता हूँ। वो इंटेंसिटी को तो मेरे, क्योंकि अगर मुझे अवेयरनेस हो गई इस बात की कि भाई होनी तो है, आज नहीं होगी तो कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी, परसों नहीं होगी तो तरस होगी, ये तो मेरे हाथ में भी नहीं है। हो सकता है 20वें माले की बिल्डिंग के गिरने के बाद भी शायद हड्डियां टूट जाए, लेकिन मैं फिर भी बच जाऊं। करेक्ट, हो तो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। हो सकता है कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, अचानक से कहीं से कुछ हो जाए और अचानक से मेरी मृत्यु हो जाए, हो तो कुछ भी सकता है। तो क्या हो गया, अब जब मुझे ये इस बात का विश्वास हो गया कि हो कभी भी कुछ भी सकता है, तो नाउ आई एम नॉट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट कि हो गया तो हो गया तो हो गया तो, अरे जब होगा तब की तब देखेंगे भाई, जब होगा तब की तब देखेंगे। और अगर उसके बारे में सोचता रहूंगा तो एक तरह से मैं उसको स्टूपिडली इनवाइट भी तो कर रहा हूँ अपनी तरफ। मैं ज्यादा मैनिफेस्टेशन में मानता नहीं हूँ, लेकिन जो भी बहुत सारे लोग मानते हैं वो तो ये भी कहते हैं ना, आप सोचते रहते हो एक चीज के बारे में तो आप उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो। अगर मैं एक फियर को बार बार सोच रहा हूँ कि सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, तो 100 बार ही सोच लूंगा तो शायद वो आपके सामने किसी फॉर्म में आ ही जाएगा। तो जो होगा जब होगा तब की तब देखेंगे, तब हैंडल करेंगे। अपने आप अंदर से क्षमता भी आएगी, शक्ति भी आएगी। जब कहीं फंस जाते हो, आपको पता है जिंदगी में कभी कहीं फंसे हो गए ना, जिंदगी में आपको किसी डार्क रूम में कोई बंद करके चला जाए तो 15 मिनट डर लगेगा। मैं आपको क्लैरिटी से बताता हूँ क्या, आपको कोई बंद करके चला जाए किसी डार्क रूम में, आपको अंधेरे से बहुत डर लगता है, ठीक है, आपके पास ना ताला है, ना चाबी है, ना कुछ है, करेक्ट। 15 मिनट बड़ा डर लगेगा, रोओगे भी, चीखोगे भी, चिल्लाओगे भी, मदद भी मांगोगे, कोई नहीं मदद करेगा। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद कहीं ना कहीं से तो हिम्मत जुटा के तोड़ोगे, कुछ खोलोगे, कुछ पिन निकालोगे बालों में से, कुछ तो तिगड़म लड़ाओगे कि नहीं लड़ाओगे, बताओ ये कहाँ से आएगा तब। इसका मतलब यह है योर ब्रेन हैज द कैपेसिटी, होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। प्रैक्टिकली एक बात कर रहा हूं मैं, होगा ना कुछ तो तिगड़म लड़ाओगे कि नहीं लड़ाओगे। That basically means somewhere down the lane you have the potential and capability to fight everything, but the problem is you're surrounded by so many fears, इसलिए हाथ पैर काम जाता है किसी प्रॉब्लम में आने में। प्रॉब्लम को फेस करने की प्रॉब्लम नहीं है आपके अंदर, प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको कैसे फेस करेंगे उसका डर पहले से बहुत ज्यादा। हम ना डरों की कहानियों में ऊंचे पड़े हैं कि हो जाएगा, तो हुआ नहीं है अभी, होगा तो देखेंगे, और जो होगा वो बता के नहीं होगा। जिंदगी में जो होगा ना वो ऐसे बता के, दरवाजा खटखटा के नहीं आता, वो अचानक से आ जाता है। इट इज सो अनप्रिडिक्टेबल एंड यू विल हैव टू हैंडल इट देयर एंड देन। ऐसा नहीं कोई 2 दिन पहले आके इनवाइट करके देखा, जीत झील जी आइए मैं आपको 2 दिन बाद इस टाइम पे डार्क रूम में बंद करूंगा, नहीं। आप पे चल रहे हो, कोई पकड़ेगा डार्क रूम में बंद कर देगा, ऐसे ही होगा ना जिंदगी में। तो ऐसे ही लाइफ है, वो भी आपको बता के कुछ नहीं करेगी। तो जो होगा वो तब के तब देखेंगे, वी विल क्रॉस द ब्रिज वंस वी अराइव। जो नहीं हो रहा उसके बारे में सोच सोच के कुछ हो नहीं रहा। किसी के साथ कुछ हो गया, वो उसकी कहानी है, वो उसकी जिंदगी है, उसकी कहानी की सच्चाई आपको नहीं पता। आपको सिद्धार्थ शुक्ला की कोई सच्चाई नहीं पता, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से एक अंश देखा है, उससे उससे बड़ा अंश तो मैं ही जानता हूँ जो मैं आपको बता नहीं सकता। करेक्ट। या आपने ऑफिसर से बॉम्बे में उनकी किडनी का जो भी हुआ, आपको नहीं पता ना उसके पीछे की सच्चाई क्या थी, वो कहाँ से हुआ, क्यों हुआ। आपने तो सिर्फ एक पोस्ट देख लिया और आपने उससे एक कंक्लूजन या एग्जाम्पशन बना लिया। हम एक कहानी बुन लेते हैं बड़ी जल्दी। कहानियों में मत उलझो, सब के सब हमें कहानियां बुनने की आदत है। बचपन से जो दादी नानी ने सुनाई है ना कहानियां, हमें कहानियां बनाने की आदत पड़ गई है। सुनते भी हैं, बनाते भी हैं। सारे झूठ आपकी जिंदगी की सारी कहानियां हैं, पता है कि नहीं पता। जो भी झूठ बोलते हैं वो कहानी है एक, कि मैं ट्रैफिक में लेट हो गया था, फिर मैं यहाँ गया, फिर पंचर हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, पता लगा घर में ही सुबह सुबह नींद लेट खुली। सच बोलने की हिम्मत नहीं होती कि सॉरी बॉस आज मैं लेट उठा, लेकिन हम सच नहीं बोलते, हम झूठ बोल देते हैं।
अरे नहीं, मैं टाइम से निकला था, गाड़ी पंचर हो गई थी सर, आपको पता नहीं, स्टेपनी भी नहीं थी सर, ड्राइवर को पंचर नहीं लगाना आता था सर, ये हो गया सर, वो हो गया सर, कुछ तो तैयार नहीं था सर, पता नहीं कितनी मुश्किलों से मैं पहुंचा हूँ। लेकिन सच क्या, आप 1 घंटा लेट उठे, बोल देते सॉरी सर 1 घंटा लेट उठा, खत्म कहानी। लेकिन हम कहानियां बनाते हैं। किसी को भी कभी भी कुछ भी देखो, उसका एक अंश को देखकर उसकी जिंदगी प्रिडिक्ट मत करो। प्रिडिक्शन क्या होती है? प्रिडिक्ट तो किया ना आपने, अजम्पशन कर लिया, चाहे सिद्धार्थ के बारे में, चाहे उनके बारे में कहानी रच ली, अरे अरे वो तो बड़े अच्छे इंसान थे, वो तो ऐसा किया, चाहे वो कोई भी इंसान हो, XYZ, मैं सिद्धार्थ की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफिशियल बॉम्बे की बात नहीं कर रहा, किसी की भी, सिर्फ एक अंश के बेसिस पे किसी को प्रिडिक्ट मत करो, अपनी कल्पनाओं की जिंदगी से बाहर निकलो और अपनी जिंदगी में झांको। अपनी जिंदगी ज्यादा जरूरी है, खुद को बेहतर बनाना, खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा आइडेंटिफिकेशन दूसरों से रखोगे तो क्या होगा, हम ना बड़ी जल्दी लोगों को आइडल भी बना लेते हैं। किसी का एक अंश देखा, अरे ही सो नाइस, आपको क्या पता क्या नाइसनेस है, किसने आपको क्या दिखा दिया। रहो 24 घंटे, रहो 6 महीने, रहो 1 साल, तो पता लगेगा कि कौन कितना नाइस है, कौन कितना नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि है या नहीं, आई एम सेइंग जस्ट गेट टू द ट्रूथ, सच, not the projected images. Don't get into all that. It's a big trap. Clear? Wonderful. Thank you so much. Who else is there? Shivani ji. Hi Shivani. Did you switch on your video? Yes. Yes. हाँ, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मैं देख भी पाऊंगा, सुन भी पाऊंगा। I can't see you at the moment though. So my video is on. It's not on. Can you switch it on? Now is better. I can see you. Tell me. तो लास्ट टाइम आपने ईगो के बारे में बताया था। किसके बारे में? तो ईगो के बारे में कि हम लोगों का ईगो, किसी ने कुछ बोल दिया है या व्हाटएवर, तो ईगो पे हर चीज होती है, तो ईगो को थोड़ा कम करना चाहिए। तो मुझे ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच का आप डिफरेंस बताएंगे? अब कहते तो ऐसे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में धागे भर का फर्क होता है, लेकिन ये धागा कौन सा है और कौन सा नहीं है कभी समझ में नहीं आता। एक्चुअली पता है क्या है, पता नहीं शायद इस सवाल का मैं जवाब अच्छे से दे पाऊंगा भी कि नहीं, क्योंकि इस सवाल की गहराई तक शायद मैं भी नहीं पहुंचा, बट इतना है कि मुझे लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट ये भी शायद एक बुनी हुई कहानी है हमारी। मुझे लगता है हमने एक दायरा बांध रखा है कि यहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके बाद ईगो है, और असल जिंदगी में ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या असल जिंदगी में कोई डिवीजन है कि जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में धागे भर का फर्क है? तो वो धागा कौन सा है, ये वो लाइन कौन सी है? कैसे पता लगेगा कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ईगो है? कि अगर मैंने इसको क्रॉस कर लिया तो मैं ईगो के बवंडर में फंस गया, अगर मैंने इसको क्रॉस नहीं किया तो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट। ये बड़ी सब्जेक्टिव है। तो दिस, आई डोंट थिंक सो दिस एनीथिंग कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। जो भी है सब ईगो ही है। शिवानी, कैन यू हियर मी? आप यहाँ पर हो? आई थिंक शी हैड एंटर्ड अगेन। उनका तो जवाब को सुनना ज्यादा जरूरी है। शिवानी, हाय, कैन यू हियर मी? अच्छा, आ जाएंगे, कोई नहीं। तो बाकी सब समझ पा रहे हैं इस बात को कि वो कोई डिवीजन है नहीं ना, कोई डिमार्केशन नहीं है बिटवीन द ईगो एंड बिटवीन द सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट है, मतलब ये तो वो वाली बात है, समुद्र में एक तरफ काला पानी दिख रहा है और दूसरी तरफ कौन सी जगह देखे थे जहाँ पे काला और ग्रीन दोनों तरह के अलग अलग पानी दिखते हैं, लेकिन कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है कि कौन सी सतह पे वो दोनों जुड़ते हैं या अलग होते हैं। It's very subjective what you call as self-respect. I think predominantly everything is ego only. It's just that हमने कह दिया कि यहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट होगा और उसके आगे ईगो हो जाएगा बस। But there can never be a demarcation. Everything is ego and you only decide जहाँ तक आप बर्दाश्त करना चाहते हो। जहां तक आपको लगता है बर्दाश्त कर पाता हूँ वहां सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हो, जहां पे नहीं बर्दाश्त करना चाहते वहां पे ईगो का नाम आ जाता है कि आप बहुत ज्यादा
जहां तक बर्दाश्त कर सकते हो, जहां तक बर्दाश्त कर सकते हो वहां तक ईगो का नाम आएगा, जहां तक बर्दाश्त नहीं कर सकते वहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम आएगा कि अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, यहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई। तो आई थिंक इट्स कंप्लीटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव थिंग। बाकी सब तो ईगो ही है, बाकी सब तो मैं से ही रिलेटेड है, हर चीज कोई कुछ कहे या कुछ ना कहे, तो ऐसा कोई डिमार्केशन तो कभी होगा नहीं मुझे लगता है। और सर आप शिवानी Yes, sir. यू हियर? हाँ Yes, आपको भी sir, बेटा yes, यहाँ sir. पर, हाँ हाँ आपको समझ में आई? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हाँ. है, बट मुझे लगता है कि इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि जब तक हम अपनी ईगो को या आई मी माई सेल्फ, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट भी आई मी माई सेल्फ ही है। अब बताओ सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे बहुत सारे लोग किसी को मार भी देते हैं, वायलेंस में भी आ जाते हैं, किसी का मतलब कहते तो ऐसा किसी को शूट भी कर देते हैं, ही केम ऑन माय सेल्फ रिस्पेक्ट। तो क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट? एट द एंड ऑफ द डे इट इज नथिंग बट आई मी माई सेल्फ। आई मी माई सेल्फ क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द डे इट इज नथिंग बट एन Right. ईगो। ये तो आप डिसाइड करते हो कि यहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट और यहाँ तक ईगो है, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट एन इल्यूजन आई फील एट द एंड ऑफ द डे, और कुछ नहीं है। Okay. और सर अभी आपने स्थिरता का बताया था, तो किसका? स्थिरता के स्थिरता, हाँ। बारे में, तो वो कैसे आ सकती है? बेटा स्थिरता को आत्मसात करने के लिए बस यही होता है कि जिंदगी की रोजमर्रा की सिचुएशन में कोशिश करो कि जो भी आपके साथ हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है, चाहे वो बुरा हो रहा है, चाहे गलत हो रहा है, उन छोटी छोटी सिचुएशंस में भी स्थिर रहो। मतलब जैसे मैं रोड पे जा रहा हूँ, अब ट्रैफिक है, करेक्ट, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ या कोई और चला रहा है, तो अस्थिरता क्या होगी कि हम बार 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 खुद को भी परेशान करें, दूसरों को भी परेशान करें, हॉर्न गाली गलौज करें, झगड़े लड़ें, कुछ You're not बैठ जाए audible. कि भाई दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। अब ट्रैफिक है तो ट्रैफिक है, ऐसे राइट नाउ। Yes, sir. आई एम सेइंग रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सिचुएशंस हमारे साथ हो रही हैं, वहां पे तो स्थिर रखना जरूरी है। वहीं से तो स्थिरता धीरे धीरे पॉलिश होगी कि जो भी आपके साथ रोज हो रहा है, क्या आप उसमें स्थिर, क्योंकि वो रोज जो हो रहा है वहीं से स्थिरता आगे बढ़नी शुरू होती है। जैसे मैं ट्रैफिक की बात कर रहा था, पता है कि ट्रैफिक है बॉम्बे जैसे शहर में, जहां पर रह रहे हो, जहाँ पे चल रहे हो, अभी रोज यहाँ पे झगड़ा करोगे, गाली गलौज करोगे, लड़ोगे, हॉर्न बजाओगे, 50 चीजें करोगे, तो आप अस्थिर हो रहे हो। करेक्ट? अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो बॉम्बे छोड़ दो, किसी और शहर में जाओ जहाँ पे इतना ट्रैफिक ना हो, जहाँ पे इतनी गाड़ियां ना हो। सिंपल है ना? लेकिन रहना भी यहाँ पर है, और फिर क्रिप भी करना है, और अस्थिर भी होना है। तो ये छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, ये रोज जिंदगी में करने जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहोगे। मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही करता हूँ, जब मन करता है एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता हूँ। कहीं पे भी अचानक से मेरा मन करेगा साइलेंट आने का, तो मैं साइलेंट क्लास पे चला जाऊंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। अचानक से मेरा मन करेगा 3:30 बजे उठने का, तो मैं उठ जाऊंगा, बिकॉज आई वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस समथिंग। अचानक से मेरा मन करेगा पूरी रात जागने का, तो मैं पूरी रात जाग लूंगा। अब क्या है, इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग, और इस एक्सपीरियंस को मैं अपने साथ रख लेता हूँ, उसको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, और वहां से कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ, लाइक अ साइंटिस्ट। ये ट्राई करते हैं, देखते क्या निकलता है। अच्छा निकला रख लो, बुरा निकला छोड़ दो, कुछ समझ में आया रख लो, नहीं समझ में आया छोड़ दो। सिंपल है, इतना ही तो है। इट्स लाइक अ प्ले ग्राउंड, यू कीप प्लेइंग, ट्राई करते रहते हैं। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और ट्राई करेंगे, समझे? तो ट्राई करते रहो रोजमर्रा की जिंदगी में। ओके, नो प्रॉब्लम साहिल, कोई नहीं कोई नहीं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर पार्टिसिपेंट। पल्लवी, अगर आपको बोलना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। एंड देन और किस किस का क्या क्या सवाल है? साहिल, ओके साहिल, आई एम रेडी इफ यू वांट टू आस्क, और यू कैन कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स, कंप्लीटली योर कॉल। हाँ, जैसे आपको ठीक लगे, यू कैन कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स, और यू वांट टू टॉक, चॉइस इज योर्स। आ जाओ 5 मिनट के बाद। हाँ, 1 सेकेंड। और साहिल जी का है, Even I have my नहीं, अमृता question. का सवाल नहीं है। ओके ओके, तराली जी आपका सवाल, तराली जी का सवाल हम
सैटरडे को लेंगे, क्योंकि मैंने आपका कल लिया था सवाल, तो मैं बाकी Okay. पार्टिसिपेंट्स का ले लूं, चलेगा? Okay, okay, okay. Okay, I'm हम ऐसे enjoying. इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं सवाल। I'm enjoying the session. Yeah. चलो वंडरफुल, थैंक यू। रेखा जी, आपका भी सवाल था? रेखा चावला, आई थिंक। विराज का हो गया, तेजस्विनी का हो गया, पल्लवी जी का एक सवाल है, और साहिल जी का, आई थिंक। और भी किसी ने हाथ खड़ा किया ना? साहिल इज कमिंग। यस, पल्लवी, डू यू वांट टू आस्क? आपका इमोटिकॉन ऑन है अभी भी? हेलो सर। यस, हाय पल्लवी। हेलो सर। बोलिए। मेरे को ये पूछना था, बच्चों के से रिलेटेड क्वेश्चन था कि अपन जो बच्चों को बताते हैं कि ये जरूरी है, ये नहीं है, तो बच्चे सुनते नहीं है। मीन्स ये दो मीन्स बिकॉज ऑफ दिस 2 years इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है पढ़ाई में या जो भी रूटीन में है, तो उसकी वजह से बच्चे बहुत एडिक्टेड हो गए हैं, फोन, लैपटॉप, अदर थिंग्स। तो कैसे मीन्स उनको कैसे अब समझाए? नहीं समझते हैं वो। मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, जरूर देखिएगा। उस पोस्ट से शायद कुछ समझ में आए, जो मैंने समझा है बच्चों के बारे में, जो बच्चों से बात करके उनके साथ समय बिता के। उस पोस्ट में मैंने ये लिखा था, बच्चों को ना जो आप कहते हो वो कभी समझ में नहीं आएगा, ना उनको सुनाई देगा, ना उसको वो आत्मसात कर पाएंगे। You will have to lead by actions. In the sense, हम बच्चों को कहते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, स्कूल करो, ये करो। क्या ऑनलाइन बैठ के कुछ कोशिश करते हैं? क्योंकि जब आप करोगे तो बच्चा भी कुछ ना कुछ करेगा। आपको देख, बच्चे आपका अस्तित्व होते हैं, आपकी छवि होते हैं। बच्चों के लिए आप ही आइडल हो। You will have to evolve, grow, expand yourself to give them the right परवरिश। अगर आप सोचते हैं कि आपके कहने से बच्चे मान जाएंगे और करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप मेडिटेट करेंगे, बच्चा आपको देखेगा। रुकिए, आप मेडिटेट करेंगे, बच्चा मेडिटेट करके आपको रोज देखेगा। उसके पास बैठ के आपका 5 AM का उसने सेशन भी पूरा कंटिन्यू किया, फिर बीच में उसका ब्रेक हो गया, तो फिर वो अभी भी फिर से वही 8 बजे उठ रहा है। और मॉर्निंग का जो उसका क्लासेस था, तो वो भी अभी नहीं करता। उसको बता रही हूँ, अभी 9th है बेटा, अभी थोड़ा सीरियस हो जा, कि अभी तूने ज्यादा टाइम देना चाहिए, 2-4 साल तू सीरियसली लेगा तो तेरा ही फायदा है। तो आपने 9th में कितनी मेहनत की थी? एक मिनट, रुको। आपने 9th में क्या सीरियस होकर मेहनत की थी? बहुत। आपने जब 9th क्लास क्रॉस की थी, तो आपने जब 9th क्लास क्रॉस की थी, तो आपने सीरियस होकर मेहनत की थी? हाँ, जितना वो कर रहा है उससे तो कम की थी सर, लेकिन वही बता रही हूँ मैं वही बता रही थी। मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, कि मैं उसको बोलती हूँ कि मैंने जो गलतियां की थी वो तू ना करे, यानी तू कर सकता है। मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ सर। मैं सीरियसली आपके उस वो सेशंस, आपके जो वीडियोस हैं, हम दोनों देखते हैं, वो बहुत फॉलो करता है और मैसेज भी करता है आपको पर्सनली। लेकिन मेरे को वही है कि अभी यानी वो बहुत ज्यादा कार्टून मूवीज, कार्टून वेब सीरीज वगैरह देखता है, तो मेरे को ये लगता है कि देखो, एंटरटेनमेंट के लिए देखो, लेकिन करेक्ट है, मैं समझ रहा हूँ वो किस प्रकार की दिक्कत है। लेकिन क्या होता है ना, बच्चों के आसपास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। उन्हें तो समय लगेगा, क्योंकि अब बच्चे जो है ना, ये इस वर्ल्ड में जो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। बच्चे क्या, माँ बाप भी, हम सभी के सब कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड के अंदर है। तो जब डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड में है, तो किसी भी चीज पे सब बंद कर दिया है। फिर भी जैसे आपने बोला कि उनके साथ पढ़ाई करो, कुछ होगा नहीं। बंद करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप बंद कर दो, कोई ना कोई रास्ता वो ढूंढ ही लेंगे। मुझे लगता है बच्चों की परवरिश में खासकर धीरे धीरे उनके अंदर आपको एसिमुलेट करनी पड़ती हैं चीजें। और बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि लीडिंग बाय एक्शंस होती हैं पेरेंट्स के लिए, कि पेरेंट्स जैसे जैसे लीड करते हैं, पेरेंट्स जैसे जैसे अपने अस्तित्व को बच्चों के लिए बदलते हैं और अपनी चीजें कुछ नई क्रिएट करते हैं अपने लिए, तो बच्चे भी उसको देखते हैं। जो आदतें आप अपने अंदर डालते रहेंगे, वही बच्चे देखेंगे। आप अपनी जिंदगी में धीरे धीरे उनके अंदर छोटी छोटी, पता कैसे होता है, वो सीड डालने वाली बात होती है। आज ये बात हुई, जैसे मैं बहुत अवेयर रहता हूँ, जैसे कोई इंसिडेंट होता है, हमारे सेट पे भी बच्चे हैं, कोई इंसिडेंट होता है। अब क्या होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है,
जैसे कल परसों की बात हो रही थी, कोई नाराज हो गया था बच्चा, जो मेरे साथ बच्ची है वो नाराज हो गई थी। अब नाराजगी में क्या किया, अब क्योंकि मुझसे नाराज हुई तो उसने कोशिश की मुझे नाराज करने की, आप समझे। और यही ह्यूमंस करते हैं, यही हमारी फितरत है। मैं हर्ट तो सबसे पहले मैं आपको हर्ट करूंगा, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा कि आपको हर्ट है। अब ये बात क्या आ गई, अब ये ना इसमें बात आ जाती है बड़ी गहरी, अगर हम समझे इस बात को, क्योंकि जिंदगी भर फिर आप वही करोगे। If you are hurt, you will make sure the other person gets hurt. The moment I got hurt, that moment, because she did something, she was okay with that. Then she was happy. Happy मतलब उसने फिर अपनी hurt छोड़ दी, आप समझे। उसके बाद उसने sorry भी बोला मुझे। But the point is, if I have gotten hurt and I'm trying to make you hurt deliberately, I'm creating everything bad around me. I'm creating a bad world around me. I'm actually creating a spoiled universe, literally. क्योंकि बड़ा सिंपल है ना, an eye for an eye will make the world blind. अगर मेरे को किसी ने अनजाने में हर्ट कर दिया और मैं जानबूझ के किसी को हर्ट करूं क्योंकि मेरी हर्ट बहुत ज्यादा, तो मतलब पेन बॉडी ट्रांसफर्स हो रही है, तो हर इंसान यही करता रहेगा तो पूरी दुनिया खराब हो जाएगी, सभी खराब हो जाएंगे, और फिर हम कहते हैं कि हम अच्छी दुनिया में क्यों नहीं रहते हैं। यही तो हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे। तो है बात बड़ी छोटी सी लेकिन बड़ी गहराई है, तो वहां बैठ के फिर समझाना पड़ता है। शायद वो बच्चा एक दिन में ना समझे, लेकिन आप एक सीड, आप बीज बो दो बस, समझदारी का, सेंसिबिलिटी का, अंडरस्टैंडिंग का। होगा क्या, दोबारा कभी जिंदगी में कुछ होगा ना 15 दिन बाद, महीने बाद, बच्चा हो सकता है वही एक्शन दोबारा करे, लेकिन एक्शन लेने से पहले 5 मिनट सोचेगा जरूर कि मम्मी ने ऐसा कहा था, पापा ने ऐसा कहा था, ये होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेते हैं बच्चा, तो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, फिर उसके अगली बार जब होगा तो फिर और रुक जाएगा। तो ऐसे ही होता है। तो आप सिर्फ बीज बोते चले जाओ, उसके अंदर से अपने आप धीरे धीरे फल फूटने शुरू होते हैं। क्योंकि अगर आपका बीज सही होगा तो बच्चा ना, हो सकता है आपके सामने फिर नटखटपन करे, लेकिन पीछे से जब आप नहीं होगे तो वो करेगा जो आप चाहते थे वो करे। आप समझे मेरी बात? मतलब जैसे दो लवर्स के बीच में होता है, जब किसी से मोहब्बत होती है ना, या जो दो लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो एक दूसरे का अस्तित्व ट्रांसफर हो जाता है। आपके सामने उसका अपना अस्तित्व है जो उसका अपना है, लेकिन जब आपके पीछे से जब आप नहीं होगे, वो किसी और के साथ डील कर रहा होगा, तो आपके अस्तित्व का एक अंश भी उनके अंदर आ जाता है। ये बच्चों के साथ भी होता है। तो ये बड़ा सबकॉन्शियसली वर्क करता है। आप सिर्फ बीज बोते रहो जो आपको करना है, और उसके फल आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको अपनी आंखों से खुद दिखेगा वो। लेकिन इट्स अ पेशेंट प्रोसेस। वही सब पेशेंस ही नहीं है, वही पेशेंस तो डेवलप करने में, धैर्य के बिना तो नहीं होगा। क्योंकि देखो बड़ी सी, आप किसी की नींव रख रहे हो, आप एक पेड़ बुन रहे हो। अब हम ये एक्सपेक्ट करें, अब क्या होता है हमारे ऊपर प्रेशर्स क्या है, हाइपोथेटिकली स्टडीज के बड़े प्रेशर है, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड। अब मैं इस बारे में कुछ कहूंगा तो फिर वो बातें कहीं और चली जाएगी, पूरे एजुकेशन सिस्टम की तरफ। तो मैं वहां तक लेके नहीं जाऊंगा, तो कोई पॉइंट नहीं है उन सब बातों का। ये हमें खुद को समझना पड़ेगा। देखो बड़ी अच्छी बात है, महाप्रिया साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा सारा खेल आज की डेट में क्या, एजुकेशन सिस्टम का एक अंश बता देता हूँ कि इतना बड़ा फ्लॉड सिस्टम है कि आपने 11वीं क्लास तक अगर कुछ नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर 12th में आपके मार्क्स आ गए तो आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, खत्म कहानी। तो कितना बड़ा फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम है। सही सर, राइट। तो अगर 9th में बच्चे का नहीं आया, 10th में नहीं आया, 11th में नहीं आया, 12th में उसने किसी तरह कर लिया, तो खत्म हो गई कहानी। तो क्या दिक्कत है, वहीं से आपका कॉलेज है, वहीं से आपका एजुकेशन है, वहीं से आपकी नौकरी है, वहीं से सब चीजें। सोच तो ऐसी सोच, वैसे ये सब चीजें भी बेमायने हैं आज की डेट में, तो ऐसा सोचते हैं तो भी। तो मुझे लगता है ये भी हमें समझना पड़ेगा एज पेरेंट्स कि हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी हिला हुआ सा है। हमें एजुकेशन तो देनी ही है बच्चों को, क्योंकि उससे ग्रामर आती है, सेंटेंस फॉर्मेशन आता है, मैथमेटिक्स आता है, XYZ 50 चीजें आती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपको देना को ना पैसा देना है, ना सर्विस को, चरित्र देना, कैरेक्टर बिल्डिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि मैं हर्ट हूं और दूसरे को हर्ट करूं, ये कैरेक्टर में आता है। ये कहीं सिखाया नहीं जाएगा स्कूल में, ये आप सिखाओगे बच्चे को। क्योंकि अगर उसने ये सीख लिया ना, तो क्या करेगा, उसके रिलेशनशिप्स हमेशा बेहतर रहेंगे।
Yes. क्योंकि रिलेशनशिप्स में भी ये तो होता है ना, मैं हर्ट तो मैं आपको हर्ट करूं, अब क्या हो रहा है, हाँ, अब क्या मैंने आपको हर्ट किया, फिर आप मुझे और हर्ट करोगे, अभी क्या हर्ट 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 चलता हर्ट रहेगा। हर्ट हर्ट 15 मिनट बाद फिर वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर वो डिबेट होगा, फिर वो टॉन्टिंग होगा, फिर फिजिकल वायलेंस होगा, यही तो होगा, और क्या हो रहा है। फिर कह रहे हैं यस हम खुश क्यों नहीं है, तो फंस गए ना ट्रैप में। शुरुआत कहाँ से हुई, बचपने से। अगर आप वहीं पे डोर काट दोगे, वहीं पे समझा दोगे, तो बच्चा धीरे 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 उसको अपनी सही चीज को अपना अस्तित्व बना लेगा। बिल्ड कैरेक्टर्स, डू नॉट build anything else, build the character of the child, because the moment character is built, मतलब संस्कृत में कहावत है, अगर सुपुत्र है तो फिर धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कमा लेगा। अगर कुपुत्र यस है तो जितना मर्जी जोड़ लो, सब बेमाने सब दबा देगा। सुपुत्र कुपुत्र का यस मतलब है कैरेक्टर्स। यस Build नहीं the character इसको of the child so that the child can do everything on their own independently and learn. Because अगर कैरेक्टर अच्छा होगा, कैरेक्टर सही स्थिर सुधरा हुआ होगा, तो अपने आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस थैंक Okay, यू सर thank यस you so much. Okay, let me take the last question. Sahil. Good evening, sir. Good evening, Sahil जी। ठंड के मौसम से फरमाए। सर काफी ठंड है हाँ, I know, I know. सर। चलो 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 हो बाकी गया सब बाकी सर अरे एक सेकंड, बाकी सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। पल्लवी जी म्यूट योरसेल्फ। 1 सेकंड, मैं म्यूट कर देता हूँ, 1 सेकंड। म्यूट। सर दिस ओके इज साहिल जी, बोलिए। रिगार्डिंग, सर मेरा अभी जो रिसेंटली पीछे 1 महीने जो गैप हो गया, इट्स मोर सर आई गॉट अ लाइक अनदर चांस। मैंने आपको बताया था एक्टिंग का बहुत शौक है। आई प्लेड लॉर्ड रामन अपने यहाँ का क्या रामलीला में बात है, पहले भी, सो नाइस, मतलब सो पहले नाइस। पहले आई हैव ऑलरेडी प्लेड, मतलब 16-17 में 2016-17 आई प्लेड। Due to some reason, some I would say politics or something, I wasn't been able to do that for next 3-4 years. I got a chance again this year, and so मैंने play किया. I had an additional responsibility of a director as well as acting in the अरे same वाह, thing. क्या बात है। ओके So sir, the thing is, चीजें वैसी turn out नहीं, मतलब जिस समय सब कुछ खिलाफ था ना, सब कुछ बहुत ज्यादा मतलब एंटी था आई वुड से, या चीजें वर नॉट एग्जैक्टली एज इफ जो मेरे को चाहिए थी, उस टाइम थिंग्स टर्न्ड आउट वेरी गुड। लाइक दे वर लाइक आई हैड द बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस, और मतलब लोग इस बार भी कह रहे हैं कि द थिंग वाज गुड, बट समवेयर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, कि कुछ मतलब ऐसा लगता है कुछ छूट गया। मतलब आई डोंट नो, मतलब कुछ दिमाग में बार बार लिंगर करता रहता है कि नहीं, वो चीज वैसी नहीं आई जैसी चाह रहा था। साइरस, your video has hanged. I'm not able to hear. You're saying? So I'm not able to hear you. Hi. Can you hear me right now? अभी आ रही है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. One sec. हाँ, much better. हाँ. So I'm saying, is it regarding the performance? Yes sir. Somewhere performance, and the thing is कि सब फैमिली भी ना कई बार जैसे चीजों को ना मतलब एक्सेप्ट नहीं करती। आई मीन समवेयर उनको लगता है इट इज नॉट आवर स्टेज की चीज नहीं। पेरेंट्स कई बार ना अपने करेक्ट चाहते हैं कि हर बच्चे का अलग फ्यूचर हो सकता है। एवरी चाइल्ड का मतलब ऑब्वियसली आई हैव अ लाइक एज ओल्ड लाइक लीनियज चली आ रही है सर। आपको मतलब बताया भी था मैंने, मतलब 5 जनरेशंस एक ही बिजनेस में, नेम है, फेम है, दैट बट इफ समबडी वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट ना, तो सर वहां पे ना सबको प्रॉब्लम हो जाती है। एंड वो जो प्रेशर, करेक्ट है, वो प्रेशर भी रहता है।
कुछ सोसाइटल प्रेशर भी, वहां के लोग भी आपको कई बार नहीं इतना समझते, जहाँ पे आप वर्क कर रहे होते हैं, वर्क एरिया प्रेशर रहता है, वहां के लोग भी आपको इतना जेलप नहीं होते आपसे, दे आर ऑल्सो पीपल हु आर अगेंस्ट यू वहां पे भी। एंड मतलब परफॉर्म करते हैं हम सर, ये इसलिए आपसे इसलिए पूछा कि सर आप ना, बिकॉज यू आर इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स योरसेल्फ, आपके साथ मतलब ये चीज मैं सोचता हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि आप, वो प्रेशर आपके सर पे होता होगा, यार मैंने उस मूवी में उस पर्टिकुलर सीन में ऐसा परफॉर्म किया था, अब मैं सेम सिमिलर कैरेक्टर कर रहा हूँ, एंड शायद मेरा मन सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब मेरे को मेन प्रॉब्लम ये है कि आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द व्हाट आई डिड। नो नो नो, वन सेकंड, हम इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि हम वैलिडेशन ढूंढ रहे थे, वो वैलिडेशन नहीं मिली, पहली बात। या हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पर प्रेशर बहुत ज्यादा था, शायद वो सोशल स्टैचर की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा था। या हम इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि हम उस आर्ट को एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो पैशन ही है हमारा, हम उससे पैसे तो कमाने हैं भी नहीं और कमाना चाहते भी नहीं, हमारा तो अपना ऑलरेडी सेट चीजें हैं, तो हम किस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। ये सवाल खुद से पूछना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है ये सवाल ही हमारे जवाब को देगा, क्योंकि ये अलग अलग लेयर्स हैं सारी की सारी, चाहे वो सोशल स्टैचर की लेयर है, चाहे वो हमारी अपने कर्म की लेयर है, वो क्या लेयर है वो समझना जरूरी है। कि वो वैलिडेशन की लेयर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम तब सेटिस्फाइड होते हैं जब शायद हमारे घर वाले भी कहते हैं वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा, मजा आया, वी वर वेरी हैप्पी दैट यू डूइंग इट। या इस वजह से हम सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि हमारे घर वाले इसके अगेंस्ट और वो अपने सोशल स्टैचर को पकड़ के बैठे हुए हैं, वो भी हो सकता है। तो किस वजह से हम सेटिस्फाइड नहीं है, यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस इन within yourself so that you get the right answer. Layers बहुत है। मेरे को सर कई बार क्या लगता है ना, मतलब लाइक आई वांट टू टेक दिस लाइक, क्योंकि सर आई एंजॉय दिस थिंग, मतलब एक्टिंग, एंड इट्स मतलब नॉट जैसे कहता हूँ प्रोफेशनली, ऑब्वियसली लगता है कि कई बार मतलब ऑब्वियसली आई हैव अ फैमिली, अब मतलब कई बार लगता है कि चीजें उस हिसाब से वर्क नहीं करेंगी, बट समवेयर आई, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ, आई एम एबल टू एक्सप्रेस बहुत अच्छी बात है। मायसेल्फ। तो मुझे लगता है यूज इट एज अ मीडियम टू एक्सप्रेस। इसमें ना पैसा ढूंढो, ना पैशन ढूंढो, ना कुछ भी ढूंढो, जस्ट यूज दिस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, इतना ही सिंपल है। अब एक्सप्रेशन है, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर किसी को पसंद है, वेरी गुड, नहीं पसंद तो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। माँ बाप को नहीं अच्छा लगता, मैं तो एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं बाकी काम भी तो कर रहा हूँ ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो निभा रहा हूँ, मेरे सर्वाइवल को कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना काम ढंग से कर रहा हूँ, मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, मैं अपने घर वालों का भी ध्यान रख रहा हूँ, बट दिस इज माई एक्सप्रेशन। दिस एक्सप्रेशन इज नॉट प्रोफेशन, इट इज नॉट पैशन, इट इज नॉट हॉबी, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। चाहे वो आधे घंटे का, चाहे 1 घंटे का, इट्स लाइक this session is an expression of this being who हिमांशु अशोक मल्होत्रा, खत्म। अब इसमें आप पसंद करो ना पसंद करो, लाइट है नहीं है, बाल है नहीं है, आवाज है नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इट इज माई एक्सप्रेशन। सर लोगों को प्रॉब्लम ये होती है, लोग वो क्या कहेंगे, वो अगर देखेगा वो क्या बोलेगा, मतलब आई मीन व्हाई द, मतलब इस बात से पेरेंट्स क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते? नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे, हम गलत चीज गलत जगह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक्सप्रेशन है। मतलब मेरे माँ बाप को आज तक मेरे माँ बाप को नहीं, माँ पापा तो नहीं है, मेरी मॉम को पिछले 5 साल में समझ में नहीं आया कि मैं क्या रहा हूँ। आप समझे, जब से शेयर ग्रुप की शुरुआत हुई है, मेरी मॉम को नहीं मैं आज तक कि मैं कर क्या रहा हूँ। यू आर एक्सपेक्टिंग द रॉन्ग थिंग्स फ्रॉम देम बिकॉज दे आर कंडीशन्ड, उनकी जिंदगी You're not audible. So you're not audible. एक्सप्रेशन नहीं है उनको, शायद अपने एक्सप्रेशन का वो क्या करते हैं, वो तो अपने ओके वन सेकंड Yes, sir. Can you guys hear me? Sahil? Yes, sir. I'm saying क्योंकि वो अपने बहुत सारे कंडीशनड एटमॉस्फेयर और फियर्स में अटके पड़े हैं, उनको अपना एक्सप्रेशन नहीं पता है। आप समझे मेरी बात? आप गलत जगह से गलत चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम एक्चुअली यही चाह रहे हैं कि वो हमारी बात को समझ लें बस, या कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर लें कि हम ये कर रहे हैं,
नहीं कर रहे तो भी कोई टेंशन नहीं, क्या दिक्कत है। जब मानना होगा तो मान जाएंगे, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हम चाहते तो यही है कि मान जाएंगे तो शायद हम अच्छे से करेंगे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज है, नहीं भी मानेंगे तो भी आप करोगे। मेरी मॉम कुछ भी कहे, मेरे घर वाले कुछ भी कहे, मेरे आसपास के लोग कुछ भी कहें, करूंगा तो मैं फिर भी, क्योंकि मेरी बीइंग का एक्सप्रेशन है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इतना ही सिंपल है। देख लो ना, कर ही रहा हूँ ना, चलते चलते भी तो कर ही रहा हूँ कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के कर ही रहा हूँ, वरना क्या जरूरत है। मैं भी तो आराम से सो के जा सकता हूँ गाड़ी के अंदर, 1.25 घंटे का रास्ता है या 1.5 घंटे का जरूरत क्या है, मतलब इतने थके हुए, मॉर्निंग से जागे हुए। मैं तो 4:30 बजे से जागा हूँ। हाँ वही ना, आप समझे तो। बट क्योंकि वो एक्सप्रेशन ऑफ बीइंग है ना, तो उसमें बड़ा वो आपको सुकून है, कहीं ना उसमें कहीं बड़ा मजा सोलेस, है। हाँ हाँ, मतलब वो मजा है, बस उसमें मजा बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आप सभी से मिलना, बात करना, कुछ सीखना, कुछ समझाना, कुछ खुद सीख लेना, कुछ नया पर्सपेक्टिव जान लेना, कुछ अपनी बातों में ही कुछ अवेयर हो जाना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आई एम सेइंग ना वैलिडेशन, एक्नॉलेजमेंट, कोई समझे ना समझे, आप उसको उस दिशा में लेके जाओ। बाकी जो अपना काम है, प्रोफेशन है, सर्वाइवल है, जो भी काम कर रहे हो, फेम नेम सब चीजें वो है। घर वाले मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो भी अच्छी बात है। आप अपना कर्म करते रहो, क्योंकि हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो समझ जाए, एक्सपेक्टेशन तो अच्छी है, लेकिन पूरी नहीं होगी तो हर्ट होगा। पूरी हर्ट होगा तो कॉन्स्टेंटली वो काम पे भी, वो एक्सप्रेशन पे भी ध्यान क्योंकि फिर मन ही नहीं लगेगा ना, फिर आधा अधूरा बोल देंगे, 5 कजन आके कुछ बोल देंगे, हर किसी की बात सेंसिटिवली टच भी हो जाएगी, फिर ध्यान काम पर से जो कर्म है, जो एक्सप्रेशन है, वो करप्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके पीछे कहानियां बुननी शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए सर मजा नहीं एक्चुअली आ शायद रहा है। यही हुआ कि जिस टाइम दिमाग में वो चलता रहा कि मतलब मेरे क्वेश्चन का शायद आंसर वो मिल गया, वो जो चीज है जो आपने कही ना, कि दिमाग में ये चल रहा था कि वो क्या कहे, मतलब ऑब्वियसली उस वैलिडेशन को, जो एंजॉय करने की चीज है उससे अपना एंजॉय करो, और उसमें उसको सिर्फ भी नहीं कर रहा मैं, हैबिट भी नहीं कर रहा मैं, कर रहा हूँ सिर्फ अब मुझे सेलिंग पसंद है, मेरे को, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, खत्म। नॉट बस उसको ना सिंपल कर दो, चीज को ना कॉम्प्लिकेट नहीं करो। भारी भारी भरकम भरकम शब्द कभी कभी चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ गया ना, नेटवर्क चला गया क्या? आवाज आ रही है? सब ठीक है। यस सर। हम सेइंग चीजों को ना सिंप्लीफाई कर दो। ना उसको पैशन कहो, ना उसको हैबिट कहो, उसको सिर्फ एक्सप्रेशन करो। I am expressing myself, simple, right? And expression में से कुछ चाहत नहीं होती ना फिर। हाँ, बोलने की एक्सप्रेशन होता ना, if I'm expressing something to my words, उसमें कुछ चाहत है, उसमें तो कुछ चाहत नहीं है भैया, वो तो निकलेंगे शब्द। अब जबान दिया तो शब्द निकलेंगे, फिर एक्सप्रेसिंग। ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। सर आपकी वाला मैं कह रहा हूँ वो भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, सम्मान अपमान भी छोड़ दो। मैं तो कह रहा हूँ और भी नीचे आ जाओ, और सिंपल कर देते हैं, और कॉमन सेंस में आ जाते। एक्सप्रेशन, व्हेन आई से द वर्ड एक्सप्रेशन, महसूस नहीं होता, इट फील्स न्यूट्रल। बिल्कुल, मतलब जीरो ग्राउंड। हाँ, न्यूट्रल है ना। मुझे एक्सप्रेस करना है तो करना है, वो तो है ही, आएगा ही आएगा। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि एक्सप्रेशन, किसी दिन भगवान अगर आवाज चलेगी तो क्या होगा? एक्सप्रेशन थोड़ा ना बंद हो जाएगा, लिख लूंगा, कलम चलेगी, एक्शन चलेंगे, आंखें चली गई, देख नहीं पाऊंगा, तो कुछ ना कुछ तो चल, क्योंकि एक्सप्रेशन है, कहीं से तो रास्ता ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। वो अपने आप हो जाएगा, बड़ा वो अपने आप होगा, वो समय के साथ होगा। आई एम सेइंग यू जस्ट फोकस ऑन कि मुझे एक्सप्रेस करना है। कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, कोई समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो ठीक है। इसको एक्सप्रेस करके मुझे अपनी आत्मा में संतुष्टि मिलती है, आई फील नाइस। मुझे इससे कोई प्रोफेशन नहीं बनाना है, इसको पैशन भी नहीं बनाना, एक्टिंग जिंदगी भर भी नहीं करनी है। जब तक एक्सप्रेस हो रहा है इसके थ्रू अच्छा लग रहा है, आई एम फाइंडिंग माय पीस थ्रू इट फॉर सम टाइम।
बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ सारी, या तो ना सारी चीजों को छोड़ छाड़ के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ छाड़ के आप कर रहे हो, तो समझ में आए बात, तो घर वालों को प्रॉब्लम होगी ना। तो द बेसिक्स इजी एंड सिंपल, तो फिर सारे प्रेशर्स रिवील हो जाएंगे, रिलीव हो जाएंगे सारे। Correct? That's why ओके। हाँ सर, थोड़ा मतलब बेटर है। सर एक चीज होगा होगा, करो करो। नहीं, एक चीज ध्यान आ रही है, वो बोलो। कुछ दिन पहले का ना एक वो जस्ट लाइफ स्टोरी में, जब वो कहीं पे भी जाके लाइक प्रवचन करते थे या जब भी, की इच्छा नहीं थी कि कोई उन्हें सुन रहा है या उन्हें कोई सुने, या उससे उन्हें ही वांट टू स्प्रेड जो उनके अंदर की, जो उन्होंने रियलाइज किया वो दे रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग कि जिसमें आप वो उस चीज को एंजॉय करते, दैट ब्लिस whatever he was giving, that was in his bliss, वो अपना एक्सप्रेशन उनके अंदर का वो बाहर निकाल रहे हैं। तो somewhere I feel connected to that story उसमें, कि दुनिया चाहे मतलब कोई आपको फॉलो करे ना करे, ठीक है, आपसे वैलिडेशन आपको मिले ना मिले, कहीं पे मतलब जरूरी नहीं है कि हर चीज का कोई मतलब निकले, मतलब हर चीज एक मीनिंग पे जाके एंड हो, या हर चीज से कोई एक पर्टिकुलर मतलब रिजल्ट निकले। नहीं, हर चीज एक मोटिव पे जाके एंड हो, या हर चीज एक रिजल्ट पे जाके एंड हो, प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है सारी की सारी। हाँ वही और देना भी कुछ नहीं होता। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ ना, मैं आपको कुछ दे रहा हूँ ना आप मुझे कुछ दे रहे हैं। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर हम बस एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप साहिल खुद को एक्सप्रेस करो इस मोमेंट पे, अपनी बात को कह के, मैं खुद को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, उसके बीच में से जिसको जो जिससे एब्जॉर्ब करना होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एग्जैक्टली, इतना ही सिंपल है ना। सिंप्लीफाइड रखते हैं सर, सही कह रहे थे आप। उस मोटिव को या उस कॉन्सिक्वेंस को, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो सब चीजें छोड़ देते हैं। कोई किसी को कुछ दे नहीं रहा है, जो मैं कर रहा हूँ उसमें भी मैं किसी I'll be the most foolish person on this earth to think that, listen, by doing whatever I'm doing, I'm saving the world. Nobody is saving the world. World is going to get saved on its own. Yes, मैं सिर्फ 100 देखेंगे तो ठीक है, कोई भी नहीं देखेगा। अब उसमें मेरा बच्चा ही क्यों ना पढ़ ले, सिर्फ हाइपोथेटिकली, या मेरी वाइफ ही क्यों ना पढ़ ले, खत्म हो गई ना। नहीं सही बात आ रही है और वो पहुंचनी है, वो निकलती है, बस वो निकलेगी अपने आप, क्योंकि वो आ रही है। और सर ये इनेट नेचर है, वो छूटता भी नहीं है सर। अब ये एक्सप्रेशन छूटता भी नहीं है सर, अपने मुंह से मतलब निकलेगा, वो छूटता ही नहीं है, वो आता है। और नीचे आ जाता है। इनेट, यस, अब आए शब्द, this is exactly what I was saying. मैं आपको मैसेज करता हूँ, this is exactly what I was saying. Innate nature. सब बहुत साउंड में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा। It is a part of तो जो आपका पार्ट ऑफ द बीइंग है, इनेट नेचर है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। उसमें क्या करप्शन होगी? जो नेचर है, अब वो तो है ही है। अब बॉडी का नेचर है ब्रीथ करना, वो नेचर है, इसमें शुद्ध हो अशुद्ध हो, बॉडी तो सांस लेगी ना। अच्छा, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, चाहे सिंपल है, पहाड़ अल्मोड़ा हो, सब जगह बॉडी ब्रीथ करना तो छोड़ेगी नहीं। वो तो करेगी। साहिल, यस सर, बड़ा एग्जैक्टली दिस
अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में तो 200 साल की गुलामी सही है हमने, कि वही तो चाहिए हमारे को, इसलिए तो गुलामी नहीं चाहिए थी कि हम बोल सके ना अपनी बात, इसलिए तो लोगों ने कुर्बानियां दी इस एक्सप्रेशन को। कि आज भी तो लोग ये कहते हैं, जरा सा कुछ कहते हो किसी का एक्सप्रेशन छिन जाता है, कहता है लड़ाइयां छिड़ जाती हैं, कि मुझे बोलना है भाई, मेरे को बोलना है। अब मैं शब्दों से बोलूं, हिडन शब्द का नाम ना लूं, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। ये सच है सर, थैंक यू सर। स्टैंड अप कॉमेडी में क्या होता है, बहुत लोगों के बारे में बहुत बोलना चाहते लेकिन नाम चेंज कर देते हैं, क्यों? It is a part of your being. Let it be a part of being. Do not get caught in the words. Yes, sir. Okay. So yes, when we have next thank you sir. अब आप भी खाना वाना खाओ। Next session will be on Saturday 12:30 p.m. Most probably the timing should stay. I've already told the team production. Bolo. Thank you so much. I'll see you back again on Saturday 12:30 p.m. Okay, everyone. Very much. Good night sir, and thank you sir. Thank you. हमारे Thank आईडी you. सेशन कब स्टार्ट हो रहे हैं? Thank you, sir. Thank you everyone. God bless you. Thank you everyone. Thank you. 5 AM में मिलते हैं। 5 AM में मिलते हैं, right? Then we'll ask. Good night, sir, and thank you very much, sir. Good night sir. Thank you sir. Thanks a lot.